The home is the first education system. That's what I personally believe. Communication plays a very important role. Child आज की डेट में रिजेक्शन ले ही नहीं पा रहे बच्चे क्योंकि हम इस जनरेशन को क्या कहते हैं गोल्डन जनरेशन वेयर वी आर गिविंग एवरीथिंग ऑन अ गोल्डन प्लेट विद अ गोल्डन स्पून. कॉइन के ना दो साइड्स होते हैं, हेड एंड टेल, और दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं. जेंजी जो जेंजी ने कर दिखाया है. Yeah, Yes, absolutely. yes, they have actually done it. Unfiltered simply means that freedom to speak. There's a huge gap between the child and the parent. Neve is not about division, it is about unity. We have to find that time for the connection. Before they become parents, mother, husband, wife, whatever labels we have in society, हम उससे पहले तो human beings हैं ना, तो human empowerment भी तो important है. You cannot go out because लोग क्या कहेंगे, but मैं ये पूछ रही हूँ लोग कौन है? हम ही तो हैं. Society is what? It's we. What do you mean by empowerment? Empowerment is motivating the child, uplifting the child, but by not criticizing, by giving a constructive feedback to the child. होम मैनेजमेंट लड़कियों को सिखाया जा रहा है, तो सारा फिजिकल वर्क वो सारा लड़कों को सिखाया जा रहा है. तो देखो कहीं ना कहीं इनइक्वालिटी तो दोनों जगह This has करती been है ना. said by a researcher also. आप बताइए शीना, इमोशनल इंटेलिजेंस ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि एकेडमिक इंटेलिजेंस ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? Okay, so firstly, thank you so much for being here and being part of this conversation. Neve का purpose यही था to bring in all educators, teachers, leaders, entrepreneurs under one umbrella, and we can have different voices so that we all can evolve together. Unfiltered इसलिए बोला जाता है Neve conversations को. It is not that we are creating some controversial statements. The only motive is to have truth. We can speak truth, honest conversations. And I feel that school में हमें बहुत कुछ सिखाया जाता है, civic sense, equality. Correct. So many things Yes, we learn, leadership, empathy, humanity. Absolutely. But I feel that till the time home systems and education systems are not aligned, Absolutely. the child gets confused. Yes, उसको ये नहीं पता कि हमें किसको follow करना है. तो कहीं ना कहीं ये confusion रहती है, और उस confusion को हटाने के लिए this platform is created so that we can have unfiltered conversations and we can help to create that alignment. Correct. Yes. So when you say the word unfiltered conversation, I think I love to do that. This is what I really specialize into. When it comes to a lot of structures and organizing and things, everything, I feel that personally I don't function that well. So unfiltered is something which talks about me, and when I talk about me, I will help others also, that they also talk about themselves, they believe in themselves, and then of course, but it's very important that we have a right platform. Yeah. And when we talk about the right platform, that right platform is, firstly, I think the home is the first education system. That's what I personally believe. Again, it's my perspective. I'm not saying that schools are not playing a role, but that is a second education system. The real education starts at home. Home is our first classroom, and parents are our first teachers. So the real upbringing, those values, those behaviors. A child learns grammar before they learn behavior. And I strongly believe in this. Yeah. So yes, so I think Neve is already doing a great initiative. And I really, Thank you. Yeah, you guys are doing a great job. I have seen a couple of your shots and reels on Instagram, and I really feel motivated and uplifted, because this is what I am and this is what I resonate with. And whatever I can get from my side, जो भी मैं अपनी तरफ से ला सकती हूँ, from my experience, from my knowledge, I would love to share that on this platform. Thank you so much, and we'll be really grateful. क्योंकि unfiltered simply means that freedom to speak. Absolutely. Honestly. फ्रीडम, हम कभी कभी हमें लगता है कि फ्रीडम का मतलब होता है कि ठीक है, देयर इज नो बाउंडेशन कि वी कैन गो आउट, वी कैन डू व्हाटएवर वी वांट टू डू, बट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट फ्रीडम. फ्रीडम है यहाँ से, यहाँ से अपने आप को फ्री करना. क्योंकि जब हम पेरेंट्स बनते हैं या फिर मुझे ऐसा लगता है लॉट ऑफ लेबल्स दैट कम अलोंग, केयर गिवर, प्रोवाइडर,
nurturer. Absolutely. तो हम ये भूल जाते हैं कि before they become parents, mother, husband, wife, whatever labels we have in society, हम उससे पहले तो human beings है ना, तो human empowerment भी तो important है और वही important है पहले. Yes. So the human foundation has to be Yeah. laid first. We Yeah. need to work on the human foundation. That is very, very important. But Sheena, what you're talking about, I think it will take some good time to reach that level. These labels have been created बिल्कुल. already. बिल्कुल. तो अब हमें उसको change करना है. वो चेंज तभी होगा जब हम आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच देंगे, राइट? सो एट द एंड ऑफ द डे आपको हमें वो स्पेस एक बच्चे को देनी है. अब वो स्पेस कब मिलेगी? अगर वो कांस्टेंट क्रिटिसिज्म में चलता रहेगा, कंपैरिजंस में चलता रहेगा, तो वो बच्चा फंक्शन ही नहीं कर पाएगा. एट वन पॉइंट ऑफ टाइम आप एक बच्चे को बोल रहे हो दैट बच्चा प्लीज स्पीक, एंड व्हेन द चाइल्ड इज स्पीकिंग आप कैसे बात कर रहे हो? यू वर टू लाउड, you should have done this better, you could have made this like this, you know. आप अगेन फिर उसको तंग कर रहे हो, तो आप पहले उसको सुनो तो सही. लेट द चाइल्ड स्पीक. एंड हमेशा एक बच्चे को जज करना इज नॉट द थिंग. अगर आप स्कूल उसको एक एनवायरनमेंट दे रहा है जिसमें वो बच्चा बोल रहा है, नोबडी इज जजिंग, बट घर पे आप उसको जज कर रहे हो, तो आपने एक इम्बैलेंस क्रिएट कर दिया. तो फ्रीडम ऑफ स्पीच तो गड़बड़ा जाएगी ना सारी. That imbalance is created. So we have to co-create. We have to create an environment. We have to create a homeschool ecosystem. And those both platforms need to be aligned with each other. Parents have to understand. I do agree. I do appreciate the parents are having very little time these days because they are working parents, right? They are spending a lot of time at home, outside home, which is agreed. But क्या हमारे पास इतना भी time नहीं है कि हम connect नहीं कर पा रहे हैं? है ना? We have to find that time for the connection. The correction needs to happen before the connection. The correction needs to be happen before the connection, right? So it's very, very important कि आप समझो, आप उसको understand करो, एक बच्चे को समझो, and फिर आप उस पे काम करो, right? So what do you mean by empowerment? Yeah. आपके लिए what do you mean by this? Empowerment is motivating the child, uplifting the child, but by not criticizing, by giving a constructive feedback to the child. देखो, feedbacks देने के बहुत तरीके होते हैं. Feedback आप ऐसे भी दे सकते हो, बेटा आपने क्या करा है? आपको मैंने इतने अच्छे से पढ़ाई कराई थी और आपका तो रिजल्ट ही नहीं आया. आप ये भी तो बोल सकते हो, बच्चे इट्स ओके, यू डिड अ गुड जॉब, है ना? फिर आप कह रहे हो कि बेटा दैट्स फाइन, वील ट्राई नेक्स्ट टाइम अगेन. बट अगर आप एक ही बारी में बोलते जाओगे, उसको तरीके से नहीं बोलोगे, तो बच्चा उसको डिस्ट्रक्टिवली लेगा, वो आपके पास आएगा ही नहीं, वो एम्पावर्ड ही नहीं फील करेगा. दैट इज वाई पीपल लाइक अस कम इन टू द पिक्चर. And when, you know, Sheena, I do get those cases where the children come and say that to me, ma'am, parents are teaching the same thing, you are also saying the same thing, similar thing, but we like it when you speak, we don't like it when they talk. क्या आप उनको भी ट्रेनिंग दे सकते हो? क्या आप उनको भी समझा सकते हो? आप भी तो हमें वही बात समझा रहे हो, है ना? सो when I say the word, I run a company with the name of Express and Empower, where I'm saying let the children express themselves, right? And then we will empower them, right? So empowerment can only happen with the correct platforms. The platforms need to be balanced platforms. अगर यहाँ स्कूल में काम होगा, घर पे नहीं होगा, घर पे होगा तो स्कूल पे इम्बैलेंस हो जाएगा. वो चाइल्ड एम्पावर्ड कभी फील नहीं करेगा. That confusion will always be in the mind of that child. So we really have to work on that. And I think it's a long way to go. It's still a long way to go. I'm so sorry to say that. Now I'm catering to a lot of children, but I cannot cater to the millions of the population that India has already. तो मुझे लगता है मेरे पास जो भी केस आता है ना, मैं बहुत पर्सनली इन्वॉल्व हो जाती हूँ. कई बार मुझे लगता है कि मुझे इतना पर्सनली नहीं जाना, बिकॉज आई कीप थिंकिंग कि अगर मैंने एक चाइल्ड को समझा दिया, उसको एक्सप्रेशन दे दिया, फ्रीडम ऑफ स्पीच दे दिया, उसको एम्पावर फील करा दिया, द चाइल्ड विल बी उसका एग्जीक्यूशन तो घर पे और स्कूल. Exactly. This is what parents have to understand. And sometimes, sorry Sheena, I'll be very open on this platform, parents sometimes don't understand that. They are not understanding it. Yes, True. They are just not getting it. Sometimes, I'm not saying all of them are the same, but they have to understand. They are the real the teachers. Also, I feel कि parents के पास अब इतने options आ गए हैं because of social media. They are following so many people, parenting coach और different perspectives कि कैसे अपने बच्चे को पालना चाहिए, उनका inner world कैसे nurturing कैसे करनी चाहिए. Don't you think so? They are also getting confused. Absolutely, absolutely. They are getting confused, and it's very important that they connect with like-minded people. They just don't follow any random stuff they are getting. They are educated enough. They know what is right for them, what is wrong for them. See, Sheena, we have to take information from everywhere.
वो लेना पड़ेगा. वी आर लिविंग इन दैट कटिंग एज Absolutely, वो तो हो ही टेक्नोलॉजी टाइम, पाएगा, राइट? बिल्कुल. वो हमें लेना ही पड़ेगा, हम उसको बंद नहीं कर सकते. अगर हम ले रहे हैं तो हमें कहीं ना कहीं अपना दिमाग भी ओपन रखना है. वी शुड नो वट इज़ राइट फॉर आवर चाइल्ड. देखो अब वही बात आती है ना, एजुकेशन बिगिंस एट होम. यू नो वट इज़ राइट फॉर योर चाइल्ड. यू नो वेदर योर चाइल्ड कैन टेक अप द प्रेशर्स और नॉट. You know that your child is academically more smart or creatively more smart. You figure that out, ना? And accordingly आप उसके basis पे data लो. आप बस हर जगह से data मत लो, आप सबकी सुनो. But at the end of the day, you have to make a right decision for your child. And if you feel the external environment, things are not happening, then my role also comes. Communicate. But do it nicely. Do it empathetically. Children these days are lacking empathy. They are feeling insecure, right? They are not being honored. They are not being respected. And every time, dear, we cannot blame the school. The home environment, the home dynamics is also to be blamed. Working parents, एक ट्रैवल कर रहा है, एक नहीं कर रहा, एक टाइम पे 2 घर पे हैं, 2 नहीं हैं. वी हैव स्टाफ टेकिंग केयर ऑफ द चिल्ड्रन. इट्स फाइन, इट्स ओके. द लाइफ हैज़ टू गो ऑन. बट कनेक्शन का टाइम, क्या हम वीक में 1 घंटा उनके साथ बैठकर कनेक्ट नहीं कर सकते? We have to connect with them. Connection has to be there. तभी कहते हैं ना, इट्स टेक अ विलेज. It takes a village to raise a child. We know that. इतने कनेक्शन होते थे, दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, It's so better. many people. Yeah. तो कहीं ना कहीं बच्चा आपस में ही. I would like to add something here because you talked about dada dadi nana nani. Summer holidays, you will be seeing that these days children are saying mama हमें नहीं जाना नाना नानी के घर. क्यों? They क्योंकि get उनको bored. exactly उनको अपनी space में रहना है. They want to be in the room, they want to be in front of the gadgets, they want to talk to their friends, they want to watch anime for example, okay? But उनको नहीं जाना. But शीना वो जाना ज़रूरी है. आपको reason बताऊं? Relationship building कैसे होगी? How will they learn how to share the spaces? है ना? तो आपकी कोच है, Yeah, जो आपको exactly. पुरानी चीजें और पुरानी ट्रेडिशनल चीजें पास ऑन करेंगे. We are not telling them कि आप जाकर 2 months उनके साथ रहो, but you need to spend some quality time with your grandparents. You know, I know people these days don't like when the grandparents do an intervention also. Sorry, they don't like it. But then you also have to tell the bachas that they are important, beta. We have to respect them. अगर आपको respect चाहिए तो उनको भी respect देनी है. वो हम आपके parents से आप हमें दोगे, वो हमारे parents से हम उनको देंगे, है ना? तभी तो वो co-creation, वो ecosystem पे काम करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है. ये दादा दादी नाना नानी के घर जाना बहुत ज़रूरी है. आई एम नोवेज सेइंग दैट सेंड द चाइल्ड टू देयर हाउस फॉर 1 month 2 months. नो, 3 days 4 days, स्मॉल. आप स्टेकेशन के पैकेजेस भी तो बनाते हो ना. फॉर सॉरी टू से आप थाईलैंड, रशिया सॉरी नॉट रशिया, लाइक थाईलैंड, दुबई, सिंगापुर, वी मेक दोज पैकेजेस नाउ. वी गो आउट. व्हाई नॉट टू देयर हाउस? व्हाई नॉट स्पेंडिंग सम टाइम विद देम? ट्रस्ट मी, वो सीख कर ही आएगा. कुछ नहीं होता. वो इरिटेट होकर आएगा, इमोशनल हैंडलिंग सीखेगा ना, एजिटेशन सीख कर आएगा, कुछ तो सीखेगा ना. उसको ये तो समझ आएगा कि इस चीज़ से गुस्सा आता है, इस चीज़ से पेशेंस मिलती है, इस चीज़ से में मुझे शेयरिंग मिलती है. इमोशनल हैंडलिंग. ऑल्सो यू इंटरेक्ट विद योर कजन्स ऑल्सो. एब्सोल्युटली. अब मुझे ऐसा लगता है कि कजन से मिले हुए ज़माने हो जाते हैं, बट इन माई चाइल्डहुड आई रिमेंबर एवरी सेकेंड डे वी वर मीटिंग, यू नो, इंटरेक्टिंग, लर्निंग न्यू थिंग्स, कॉन्फ्लिक्ट हैंडल करना सीखा. एब्सोल्युटली. क्योंकि आप डिफरेंट बैकग्राउंड, डिफरेंट होम सिस्टम से आ रहे हो, तो यू लर्न ना कि हाँ यार कैसे हैंडल करना. नॉट एवरीबडी इज लाइक यू. हाँ. जैसे one of the cases which I would like to share, one of my students is a single child. You know, आपको she's got an admission in a very top premier institute in India. आपको पता है उसने मुझसे अपना क्या एक डर शेयर करा कि मुझे मैम सिर्फ ये डर लग रहा है कि आई बीइंग अ सिंगल चाइल्ड, हाउ विल आई शेयर माई हॉस्टल रूम, बिकॉज आई हैव ऑलवेज बीन द क्वीन ऑफ माई रूम, राइट? मैं कैसे शेयरिंग करूँगी? माई बेड विल बी शेयर्ड बाय समबडी, राइट? माई रूम विल बी शेयर्ड बाय समबडी. हाउ विल आई मैनेज? तो ज़रूरी है ना, अगर शेयरिंग कल्चर की आदत ही नहीं है बचपन से, तो फिर कैसे? इट्स ओके टू हैव अ सिंगल चाइल्ड. इट्स एब्सोल्युटली ओके टू नॉट टू हैव अ चाइल्ड ऑल्सो. यार, वी आर लिविंग इन दैट एरा. डेंग कपल्स, वी नो दैट, राइट? इट्स आवर कॉल, इट्स आवर लाइफ, वी नो हाउ टू बिल्ड इट, राइट? At the end of the day, it's all about happiness as well. Success will come first, happiness should come. सक्सेस आ जाएगी, पहले हैप्पीनेस आनी चाहिए. आपकी फाउंडेशन अच्छी होनी चाहिए. अगर आपकी स्ट्रॉन्ग ह्यूमन फाउंडेशन है, सक्सेस, हैप्पीनेस, एवरीथिंग विल स्टार्ट फ्लोइंग. दैट इमोशनल हैंडलिंग हैज़ टू बी लर्न्ड. That will be learned. Again, you can't burden the entire education system all the time. No.
I'm not anti-education system. I myself is coming from a conventional school. So I know how much value it holds. But at the end of the day, the home education system, उससे भी एक लेवल 2 लेवल्स ऊपर बोलूँगी मैं. वो फर्स्ट है, ये सेकंड है. एक और मेरा पर्सपेक्टिव है इसमें कि हम हमेशा बच्चे की इनर चाइल्ड के बारे में बहुत ध्यान देते हैं कि उसको इमोशनल सेफ्टी और उसको बेस्ट पेरेंट का ड्रीम होता है कि उसको बेस्ट फैसिलिटीज़ दिया जाए. बट एट द सेम टाइम वी हैव टू सी कि पेरेंट्स का भी जो एक इनर चाइल्ड है जो शायद धीरे धीरे करके डाई हो जाता है विद मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज. उनके भी एम्बिशंस होते हैं, वो भी चाहते हैं कि दे वांट टू गेट फ्री, यू नो, अदरवाइज इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर नेक्स्ट 20-30 इयर्स Absolutely. टू ग्रोइंग अप विद योर चाइल्ड. वो भी ह्यूमन बींग्स है, दे आर नॉट उन्होंने कोई प्लेबुक तो उनके पास है नहीं कि उनको पता है कि पेरेंटिंग कैसे करनी चाहिए. दे आर आल्सो लर्निंग फ्रॉम हियर And there is no word like perfect parenting. परफेक्ट also. पेरेंटिंग है कोई नहीं. word ही नहीं तो है. शायद पेरेंट्स को ही सीखना पड़ेगा. इम्परफेक्ट होना भी ठीक है, लेकिन Very साथ में ग्रो भी कैसे करना है. द ग्रोथ ही तो नहीं हो रही है शीना. द ग्रोथ इज जस्ट नॉट हैपनिंग, क्योंकि वो आज भी अपने उन्हीं सेट प्रोसीजर्स के साथ बैठे हुए हैं. व्हेन आई टेल द चाइल्ड दैट यू नीड टू इवॉल्व, इट्स इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर द पेरेंट टू ऑल्सो इवॉल्व. अगेन, आई एम नॉट टेलिंग द पेरेंट्स टू फॉरगेट द बाउंड्रीज. आप चाइल्ड को उसकी वैल्यू सिस्टम पे ना लेकर जाओ. आई एम नो वेयर सेइंग दैट, बट आपको भी इवॉल्व होना पड़ेगा. अगर चाइल्ड घर आ रहा है स्कूल से, अगर आप आते ही उससे पूछोगे, आई एम श्योर वी हैव बीन हियरिंग दिस इन लॉट ऑफ पॉडकास्ट, बेटा आज आपका दिन कैसा था, हाउ वाज द डे. नहीं पूछना, उसको सेटल होने दो. लेट द चाइल्ड रिलैक्स अ बिट, हैव फूड अ बिट. तभी मैं आपको बोल रही हूँ ना, कनेक्शन आप थोड़ी देर बाद भी कर लो ना यार, कोई इशू नहीं है. लेट द चाइल्ड यू नो बी इन द रूम एंड रिलैक्स अ बिट. आफ्टर 2 hours, बेटा आज आपने बताया नहीं, व्हाट इज दैट गुड थिंग दैट हैपेंड टुडे. You know, what is that bad thing that happened today? Was there anything in the entire day which made you feel like little bad about yourself, little aggressive about yourself, या कुछ भी इमोशन से रिलेटेड. आप बात तो करो, है ना. तो आपको इवॉल्व होना बहुत ज़रूरी है इन टुडेज टाइम. इफ़ यू विल नॉट इवॉल्व, आप इस ओवरवेल्म सिस्टम पे नहीं चल पाओगे फॉर अ लॉन्ग टाइम. इतने डीप कंडीशनिंग है ना हमारी पैटर्न्स को लेकर कि ऐसा ही हमने देखा है और ऐसा ही चलता है. और एक और बहुत चीज़ लोग कहते हैं कि लोग क्या कहेंगे, यू नो, सोसाइटी क्या सोचेगी. उसके चक्कर में मुझे लग रहा है कि हमने अपने लिए एक इनविजिबल केज बना लिया. Absolutely. नहीं, जैसे फॉर बीइंग इट इज़ योर चॉइस फॉर नॉट गेटिंग मैरिड और नॉट हैविंग अ चाइल्ड और व्हाटएवर, है ना. उसके कॉन्सिक्वेंसेस, साइड इफेक्ट्स भी आपकी चॉइस है, वो आप ही ने देखना है. और इट्स नॉट अबाउट पॉजिटिव और नेगेटिव. गेटिंग मैरिड, नॉट गेटिंग मैरिड, दोनों के अपने अपने साइड इफेक्ट्स होते हैं, राइट. बट ये जो लोग क्या कहेंगे, जो एक बहुत ही बड़ा लेबल है, एंड आई फील दैट बहुत लोग इस चक्कर में फंसे हुए. दे फील स्टक. अगेन देन ऑल्सो इस पर्टिकुलर सिनेरियो में भी मेरा रोल आता है. ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू वर्क ऑन योर इनर सेल्फ, योर इनर चाइल्ड. है ना, यू हैव टू यू हैव टू स्ट्रेंथन दैट. अगर वो स्ट्रेंथन है ना शीना, देन आपको ज़िंदगी की कोई ताकत नहीं रोक सकती है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वट एवर डिसीजन यू मेक, बट सबसे पहले आपको अपने कोर पे काम करना बहुत ज़रूरी है. नाउ वी बीइंग एडल्ट्स, वी कैन मेक आवर ओन चॉइसेस, वी कैन मेक आवर ओन डिसीजंस, राइट. बट जब आप एक चाइल्ड को बड़ा कर रहे हो, तो आपको एकेडमिक्स पे डेफिनेटली करिएगा. एट द एंड ऑफ द डे तो करियर बनाना ही बनाना है. वी ऑल नीड टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट. बट आप ये मत भूलिए, इमोशनल इंटेलिजेंस पे भी आपको बराबर का काम करना है. आप वो क्यों भूल जाते हो कि अगर एक चाइल्ड आपसे कुछ एक इंसिडेंट शेयर कर रहा है, आपको इमीडिएट रिएक्ट नहीं करना है, आपको सुनना है, आपको उसको बताना है क्या सही है क्या गलत है. अगर आप इमीडिएटली चाइल्ड के बोलने में ही, कनेक्शन से पहले ही करेक्शन कर दोगे, यू विल लूज द चाइल्ड. क्योंकि चाइल्ड के दिमाग में हमेशा ये आ जाएगा, मैं तो मॉम डैड से कुछ भी शेयर करता हूँ, बस वो तो जज करने लग जाते हैं, आज के बाद मैं नहीं जा रहा. शीना, मैंने अपनी क्लासेस में वो स्टोरी सुनी हुई हैं जो बच्चों ने खुद बोला है दैट दे हैव नेवर डिस्कस्ड विद द पेरेंट्स एंड दे टेल मी, मैम प्लीज़ मम्मा पापा को मत बताना. एंड व्हेन आई डू दैट रैपो बिल्डिंग, आई टेल देम इट्स ओके बेटा, दिस इज़ योर सेफ स्पेस. वो वेंट आउट करते हैं, वो मुझे बताते हैं हाउ दे फील. एक कांस्टेंट जजमेंट हमेशा घर पे हो रहा होता है, एक लेबलिंग हो रही होती है. तुम तो हो ही ऐसे, तुम्हारी तो बस की नहीं है, तुम तो बहुत ही लेजी हो, दिन में सारा दिन बेड पे पड़े रहते हो, वीकेंड्स पे सोते रहते हो, तुम कहाँ जाओगे, हमें तो यही नहीं समझ आ रहा. अरे वो चले जाएंगे, वो चले जाएंगे, पहले उसको समझने की कोशिश तो करो, वो ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है, व्हाट इज हैपनिंग. और वो चाह क्या रहा है, वो क्या चाह रही है. जब वो चाह रहा है या चाह रही है, फॉर दैट मैटर, वर यू देयर फिजिकली, वर यू प्रेजेंट. क्या आपने ऑब्जर्व करा.
अब वो ऑब्जर्वेशन है, शायद वो बचपन से करनी पड़ती है, नहीं? शीना, बच्चा हमेशा ऑब्जर्वेशन से ही सीखता है सबसे ज़्यादा, या सबसे ज़्यादा। टेक्स्ट बुक लर्निंग डेफिनेटली आपको आगे लेकर जाती है, बट जो रियल लेसन्स होते हैं, द मोस्ट पावरफुल करिकुलम इज एक्चुअली बिल्ड एट होम. It's built at Totally home. agree. I have always been struggling with this home environment and the school environment. ऐसा लगता है कि मैं बीच में आकर फंस गई, you know, I'm an idiot. And then I try to tell, you know, the parents कि नहीं, आपको यहाँ काम करना है. जब मुझे parents बोलते हैं, नुपुर आप बताइए हमारी क्या गलती है, मैं उनको बताती हूँ. आपको क्या लगता है वो सब सुनते हैं? नहीं ना, they would do what they feel like doing. It's okay. They are adults, they know what is good and what is not. अगेन मुझे भी कोई बोल रहा है, मैं सबकी बात नहीं सुनूंगी, बट कई बार मुझे बोलना होता है कि दिस इज़ नॉट हैपनिंग, अगर आप नहीं करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी. लेट्स फिक्स इट शीना, वी नीड टू फिक्स द एनवायरनमेंट बिफोर हैविंग एन इवॉल्व्ड education system. Fix the environment, make the changes in the current environment. Fixing is very important. ऑल्सो कम्युनिकेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि कभी कभी मैंने देखा पेरेंट्स का स्ट्रगल ही है कि कम्युनिकेट कैसे करके बच्चे से, या तो अग्रेसिव टोन में आएगा या इट बी टू सॉफ्ट कि बच्चा सुनेगा ही नहीं, आप सुनेगा नहीं, या फिर आपके पास दो ही ऑप्शन होते हैं, तो जेंटल पेरेंटिंग है या फर्म पेरेंटिंग है. हम कहीं ना बीच का रास्ता नहीं, वोकेबिलिटी कैसे लेते नहीं शीना है. आई वुड लाइक टू ऐड समथिंग हियर. देयर इज अ बैलेंस पेरेंटिंग. देयर इज अ बैलेंस पेरेंटिंग. जेंटल कर लोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, फर्म करोगे तो और भी गड़बड़ हो जाएगी. सो देयर हैज टू बी अ बैलेंस. अ बैलेंस नीड टू बी मेंटेन. बिल्कुल. कनेक्शन आएगा, कम्युनिकेशन होगी, बैलेंस होगा, तो आप खुद देखो आपका बच्चा कहाँ से कहाँ पहुंचेगा. बट आपके अंदर ही शीना, आई डोंट नो, आई शुड बी सेइंग दिस ऑन दिस प्लेटफॉर्म, द पेरेंट्स देमसेल्व्स आर बैटलिंग विद देयर ओन स्ट्रगल्स. Unhealed experiences, unhealed traumas, childhood traumas, right? They themselves are a little anxious. आपको पता है आज के डेट में एक छोटा बच्चा मुझे आकर बोल देता है कि मैम आई एम हैविंग एंजाइटी, आई हैव ADHD. आप कैसे ये लेबल्स बोल रहे हो यार, कैसे टर्म्स बोल रहे हो, और आपको पता भी है मतलब क्या है. बिल्कुल. आप कैसे बोल रहे हो, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, दोज इन्फॉर्मेशन, दोज थिंग्स दे आर गेटिंग ऑन द फीड. गलती से कुछ देख लिया तो वो फीड पे आता गया. एल्गोरिथम सेट हो गया, बस मैम मुझे ये हो रहा है. मैं आपको कैसे बता? आप गए हो किसी साइकेट्रिस्ट के पास, आप गए हो किसी साइकोलॉजिस्ट के पास, आप गए हो किसी एक्सपर्ट के पास, बैठे हैं ना, करने दो उनको उनका काम. आप बैठे बैठे अपने आप को लेबल्स क्यों दिए जा रहे हो? पेरेंट्स खुद बेचारे स्ट्रगल कर रहे हैं. कई बारी वो इतने ओवरवर्कड होते हैं, स्ट्रेस्ड होते हैं, ओवरवेल्म्ड होते हैं. मैं कई बारी भी नहीं, सॉरी शीना, मोस्ट ऑफ द टाइम्स दे आर लाइक दिस, एंड देन दे जस्ट पास इट ऑन टू द चिल्ड्रन. एंड आई फील दैट इफेक्ट मैं देखती हूँ वो अपने 1 hour सेशंस में. मैं वो शीना देखती हूँ. आई सी इट, आई फील इट. चिल्ड्रन, it's very important that we raise the children on how they think, how they feel, how they communicate, how they are respected, how they are honored. Those things are not happening. Children should be self-aware. अवेयरनेस, सेल्फ अवेयरनेस कितनी इंपॉर्टेंट है. पहले तो हम एडल्ट्स आनी चाहिए, तभी तो आप आसन कर, तभी तो आप जो आपके पास है आप वही दोगे आगे. आपको क्या लगता है शीना, आपकी लाइफ में और मेरे लाइफ में पर्सनल स्ट्रगल्स नहीं है, स्ट्रेसेस नहीं है, बट व्हेन इट कम्स टू अस, व्हेन इट कम्स टू आवर फैमिली, वी हैव टू मेक श्योर जब हम उस पे काम कर रहे हैं तो हमें उसको थोड़ा सा रिलैक्स करना है. वी हैव टू टेक अ डीप ब्रेथ, है ना, हमें फिर उस पे काम करना है. बट अगर हम लोग कहीं से स्ट्रेस्ड हैं, कहीं किसी के ऊपर निकालेंगे, तो क्या हम अच्छा कर रहे हैं? आर वी डूइंग जस्टिस टू दैट पर्सन? नो ना. उस बंदे को बिना मतलब कि हम एक ट्रैप में फंसा रहे हैं फॉर नो रीज़न. पेरेंट्स अक्सर कर रहे हैं ये काम. आई ऑल्सो रियलाइज दैट, जैसे मैं आपको बता रही थी कि रिसेंटली मैंने एक रील बनाई थी जिसमें मैं ये कह रही थी कि स्पेशली फॉर सन्स हम कभी कभी सोचते हैं कि दे आर नॉट बॉर्न किंग्स और दे आर नॉट योर एसेट्स. वो आपका ROI नहीं है कि चलो यार मैंने इस पर इतना इन्वेस्ट करा तो मुझे इतना कोई अच्छी जॉब या कुछ काम करेगा या फिर इनहेरिट करेगा. वो सकता है उसको नहीं करना हो. यू नो, वी डोंट गिव दैट ऑप्शन. आई अंडरस्टैंड फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इज इम्पॉर्टेंट और हर पेरेंट चाहता है कि इवेंचुअली मेरा बच्चा इंडिपेंडेंट हो, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो. और वो अक्सर लड़कों के साथ देखा जाता है सीन, क्योंकि लड़कियों के साथ तो यही माइंडसेट होता है कि ठीक है उनको पढ़ा तो दिया लेकिन साथ साथ होम मैनेजमेंट भी सिखा दो, सो दैट कि जब शादी होगी तो फिर उसको पता होना चाहिए, उसको टॉन्ट ना मिले कहीं और से. करेक्ट. बट ये एक मिस मैनेजमेंट तो है ही कहीं ना कहीं. एंड जब शादी होती तो सारा बर्डन ऑटोमेटिकली लड़के के ऊपर आ जाता है. करेक्ट. यू आर द प्रोवाइडर, फैमिली का भी ध्यान यू आर द प्रोवाइडर, प्रोटेक्टर, हमारा सारा भी बनो, सब कुछ तुम नहीं करना है. हाँ. और ये कहीं ना कहीं
justified नहीं है. Huh, it is not justified. But Sheena, things are changing now. Things are definitely changing. But yes, with our generation and the old and हमारे से जो पहले की generation है, उनके साथ तो ये same typically exactly copy based mindset है जो आपने मुझे बताया. Now things are changing. But again there is a long way to go. आज भी हम girls को बहुत protective लेकर चलते हैं. बेटा, be soft. You can't be loud. Take it easy. Learn मुझे to एक बात adjust. बहुत बोला जाता है कि you should be soft. है ना, टेक इट इजी, यू नीड टू एडजस्ट. बट जब बॉयज़ की बात आती है, बेटा इट्स ओके, यू कैन ऑल्सो हैंडल. बट आप हम उनकी एक्सप्रेशंस को सप्रेस करते हैं. हाँ, you can't cry. You can't What will cry. people say? Yeah, what will people say? You are a boy. You are not a girl. Don't cry. Why are you doing that? क्यों नहीं वो क्राई कर सकता? वो कहाँ वेंट आउट करेगा? अगर आज भी आप देखो, आपके पास थेरेपीज में अगर आप एक्सपर्ट से भी कभी बात करोगे, हैव लॉट ऑफ पीपल इन माय नेटवर्क आल्सो, आज भी वुमेन ज़्यादा चाहती हैं, मेन कम चाहते हैं. बिकॉज उनको लगता है ये एरिया उनके लिए है ही नहीं. वाई विमेन आर बीइंग मोर वोकल? शायद वो शुरू से बचपन से वो उनको बोलने का शौक होता है. एक तो उनकी वायरिंग ऐसी हुई है. वायरिंग, लेट्स पुट इट दिस वे, उनकी वायरिंग ऐसी होती है. और बॉयज़ की वायरिंग ऐसी होती है कि नहीं, थोड़ा सा आराम से, टेक इट इजी, धीरे, बोलना नहीं, रोना नहीं, अंदर ही अंदर ही. सो दे आर स्ट्रगलिंग विद देयर ओन बैटल्स, यू नो. That mindset also needs to change. Things are changing, but I want to be very honest, I think it's a long way to go. Long way to go. So things will take its own sweet time probably. Also, I feel एक ना inner world, outer world और equal partnership की मैं बात करना चाहूँगी. That even though both of them are working, husband and wife, and eventually कहीं ना कहीं ये होता है कि inner world should be female dominant and male should dominate the outer world. Correct. इनर वर्ल्ड का ये मतलब हो जाता है नर्चरिंग योर चाइल्ड, इवन दो शी इज़ वर्किंग ऑल्सो, बट कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन होती है कि उसी को नर्चर करना है, होम मैनेजमेंट भी उसने देखनी है और बच्चा भी उसी ने पालना है. और जो आउटर है वो जो प्रोवाइडर और नेटवर्किंग और बाहर जाकर काम करना, वो कहीं ना कहीं इट्स अनसेट डिविजन है ये कहीं ना कहीं. एंड इफ अ वुमन वांट्स टू नेटवर्क और शी वांट्स टू गेट आउट, शी वांट्स टू गेट द एक्सपोजर, तो कहीं ना उसको कैरेक्टर पे आने शुरू हो जाता है कि व्हाई शी इज गोइंग आउट, वेयर आर द मेन ऑफ द हाउस दैट दे आर नॉट इंटरैक्टिंग. If a woman is ambitious, we start labeling her as she's too ambitious, she's too confident. And she's too opinionated. She's तेज नहीं होता कि आजकल exactly तेज. She's very strong. यार ये तो बड़ी तेज है. Strong का मतलब I think हमारी इंडियन सोसाइटी में तेज है. तेज, करेक्ट है ना. और जब मेन की बात आती है तो हम उसको सारे लेबल्स को हम एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं कि भैया वो तो जा सकता है. दैट अ बॉय कैन ट्रैवल ऑल्सो, ही कैन टेक अप मोर एंड मोर ट्रैवल अपॉर्चुनिटीज, बट द गर्ल शुड कीप अ बैलेंस. व्हाई? बिकॉज उसको बच्चों को देखना है, उसको नर्चर करना है. क्यों वो कॉम्प्रोमाइज एक बॉय क्यों नहीं कर सकता, वो एक मैन क्यों नहीं कर सकता? Why a woman always has to do why that? she's traveling so much? Correct. Where is Why? she Why? going? What is she doing? See, and it's a part of her profession. Exactly. और फिर ये भी बोला जाता है शीना कि ऐसा प्रोफेशन लिया क्यों? हाँ. Why did you go for such profession? Were you not aware? In today's social media's time, आपको नहीं पता था कि इस प्रोफेशन इज ट्रैवलिंग की डिमांड बहुत ज़्यादा होगी. यू शुड हैव बीन लिटिल चूजी अबाउट गोइंग फॉरवर्ड. आप थोड़ा सोच समझ कर लेते. क्यों भाई, उसके भी तो एस्पिरेशंस हैं, उसके भी तो एम्बिशन है. That's what now और so in the name of लोग क्या कहेंगे, लोग क्या हम इतने कहेंगे. बैरियर्स और रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं कि जो शायद एक किसी का भी स्किल सेट हो, आप उसको किल कर रहे हो बेसिकली. Exactly. यू कैन नॉट गो आउट बिकॉज लोग क्या कहेंगे. बट मैं ये पूछ रही हूँ, लोग कौन है? हम ही तो है. सोसाइटी इज व्हाट इट्स वी. हम, हमारे वो 4 दोस्त, हमारी एक्सटेंडेड फैमिली, हमारे फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स, तो है, वही तो है. आज हम लोग सब एजुकेटेड सोसाइटी को बिलोंग करते हैं, पर ये लेबल्स हमने भी सुने हैं एंड हमने भी फील करे हैं. सो अब जैसे अगर हम आज इस पॉडकास्ट में अगर हम अपना सीजेपी पार्टी की बात ना करें तो अच्छी बात नहीं होगी. बिकॉज जेंजी ने कर दिखाया है. यस, दे हैव एक्चुअली डन इट. और सब कह रहे थे कि हो ही नहीं सकता. Everybody was saying, he will not put down his papers, he'll not put his foot down, but he did it actually. Gen Z की power. Gen Z सोर्स पे जा रही है. What is the reason? And मुझे लगता है ये लड़ाई सिर्फ पेपर लीक की नहीं थी. There were a lot of agendas attached to it. And it just became the prime agenda. और उस वजह से सारा काम हो गया हमारा. Yes. So things are unfolding, things are changing, things are evolving. But again, as we are saying, there is still a long way to go. But at least people like you, your platforms, can actually bring a big change to this ecosystem. Really. बिल्कुल यही कोशिश है कि यही हमें इसी पे काम करना है. Because you are handling your space, I'm handling my space. But हमारे जैसे और conversations ऐसी होंगी, ऐसे ecosystems create होंगे, तो ये labels तभी diminish होंगे.
तभी धीरे बिल्कुल, धीरे बिल्कुल। धीरे खत्म होंगे ये हमारी सोसाइटी से। Yeah, so the other day somebody was saying that why don't you choose sides? आप सिर्फ women empowerment की क्यों नहीं बात करते, या फिर आप सिर्फ men empowerment की क्यों नहीं बात करते? Then I said why are we taking sides? यही तो cause है division का। या तो आप caste में कर देते हो या religion में कर देते हो। अभी भी caste versus caste, religion versus religion ये exist करता है। True. And to be very honest, मुझे कभी समझ ही नहीं आया था। I thought everybody is same. तभी शायद ये नीव की फाउंडेशन मैं बार बार यही कहती हूँ कि नीव इज नॉट अबाउट डिविजन, इट इज अबाउट यूनिटी। यूनिट, ठीक है, क्वालिटी तो पता नहीं कब आएगी, बट यूनिटी तो इम्पोर्टेंट है ना, दैट वी आर ऑल टुगेदर। और अगर सब साथ है, रिलीजन हो, कास्ट हो, मेन वुमेन हो, तो आई थिंक वी कैन अचीव अ लॉट। यस, सारा स्ट्रगल ये है कि अकेले आप कब तक कुछ अचीव करने में लगे रहोगे। सो डिफरेंट चॉइसेस इक्वल डिग्निटी, या very important. Different choices, equal dignity. Equality doesn't mean sameness all the time. या बिल्कुल, Yes. एब्सोल्युटली। So equality means दो genders हैं, different choices बना रहे हैं, but they are being respected. डिग्निटी, रिस्पेक्ट Yeah. करना बहुत Yeah. इम्पोर्टेंट। तब वो जाकर equality में convert होती है. So it's important. If a woman wants to travel, she wants to travel because her job is demanding. है ना? तो that is important. We have to strengthen the voice, but at the same time we have to make sure we are not silencing another one. That is very important. Strengthen करो पर दूसरे को चुप मत करवाओ. Strengthen करो तो दूसरा समझे कि आप उसकी आवाज़ को निकाल रहे हो, तो दूसरे को भी समझना है हम उसको क्यों निकालना चाह रहे हैं. Strengthening voices are very important. We have to push the child, whether a girl child or a boy child, कि आप बोलो. You have the right to speak. Suppress मत करो उनको. Also, do you think a confident woman generally Indian society में difficult woman के tag से जाना जाता है कि she's too difficult, we can't understand her, क्या चाहती है? Absolutely, she's too difficult. I get to hear this. In fact, मैं खुद ये सुन रही हूँ अपनी surroundings में. Yeah. She's too confident, she's too difficult, she's overly ambitious also at the same time. क्यों? क्योंकि वो बाहर निकलना चाहती है, वो काम करना चाहती है, वो overly ambitious है, तो वो क्या too difficult हो गई है? I still don't understand the logic कि Yes. इसमें क्या। और यही काम अगर एक आदमी करता है तो हम उसको कहते हैं कि that's fine. Let him do ना, let him take over, but things are changing, we have to understand. अगर हम women empowerment की बात कर रहे हैं, हम financial independence की बात कर रहे हैं, तो हम male dominated society की बात नहीं कर रहे हैं, हम female and male, हम इस society की बात करें जिसमें दोनों coexist करते हैं. That when I am teaching the children, when I am mentoring them, coaching them, मेरी चीज़ें अलग नहीं होती हैं कि बॉय स्टूडेंट आ रहा है तो मुझे आज ये पैटर्न समझाने हैं, गर्ल आ रही है तो ये करने, तो मैंने तो अपनी टीचिंग में इसको ऑलरेडी डाल दिया है. मुझे दोनों को स्ट्रेंथन करना है, दोनों को एम्पावर करना है, दोनों को खड़ा करना है और दोनों की फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करना है. मैंने कभी ये नहीं सोचा कि वो बॉय है उस पर ये काम होगा, गर्ल है तो उस पर ये काम होगा. मैंने हमेशा इक्वालिटी में बिलीव करा है. कई बार ये भी होता है शीना कि द पेरेंट्स से तो हमारे पास तो बच्चा बोलता ही नहीं घर में, नुपुर ही डजंट स्पीक एट ऑल. बट आई सेड मेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं है. वी आर जस्ट चैटिंग, कम्युनिकेटिंग फॉर गुड स्ट्रेट 1 hour. यू आस्क मी एनीथिंग अबाउट योर चाइल्ड एंड आई टेल यू. आप मेरा टेस्ट लो, आई एम रेडी टू टेक दैट चैलेंज. एंड दे आर लाइक कि ओ नो, आपको कैसे पता, आपको कैसे पता, हमें तो उसने बताया ही नहीं. अरे बताया क्यों नहीं? क्योंकि आपने सिस्टम एनवायरनमेंट ही ऐसा क्रिएट कर दिया ना. आपने हमेशा एक एकेडमिक प्रेशर का एनवायरनमेंट क्रिएट करा है, मार्क्स का, डिग्रीज का, यूनिवर्सिटीज का. द न्यू बैच ऑफ स्टूडेंट्स इज गोइंग टू द यूनिवर्सिटीज दिस ईयर. अगर हम एक एक्स यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, अगर for example there are big universities we know, just to name a few, Ashoka, Shiv Nadar, then we have Scalar Institute of Technology, we have IIAD, we have Bennett. okay, अगर एक हवा का रुख चल रहा है फॉर एग्जाम्पल शिव नादर की तरफ, तो सब शिव नादर की तरफ भाग रहे हैं. क्यों? I don't know. Why? अशोका भी तो है, बेनेट भी तो है. अच्छा बेनेट Social status, social validation. बस. See, that's what I was जब हम बात कर रहे थे, मैं यही बोल रही थी कि ये जो सोशल स्टेटस वैलिडेशन है, आई फील दैट ये ज़्यादा ना वो जो एलीट और जिसको हम कहते हैं कि दे आर वेरी एजुकेटेड, ये हमारा माइंडसेट है ना कि वो जितना करेक्ट रिच और प्रीमियम और एलीट फैमिली से होगा ये तो एजुकेटेड ही होगी. बट आई एम रियली सॉरी, आई डोंट थिंक सो, क्योंकि वहीं पर सबसे ज़्यादा आई फील एक डिवीजन दिखता है. आई फील आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल जहाँ पर स्पेशली वुमेन, दे आर satisfied with their life, they are getting all the luxury in their life, but still they are not happy, They are not क्योंकि वो यहाँ से free नहीं फ्री नहीं है. they want their own voice eventually. Yes.
और वॉइस का ये मतलब नहीं है कि आप जाकर नॉइज क्रिएट कर रहे हो, we वॉइस are का ये not- मतलब है कि हाँ यार आई डोंट वांट टू डू दिस और आई डोंट फील लाइक yes. डूइंग। And then you are being respected, you are being honored for a different choice that you made. सो नो बोलने का तो ऑप्शन ऑप्शन ही नहीं है ना, नो ही खत्म हो गया खत्म हो गया। हाँ, तो यू आर बीइंग रिस्पेक्टेड, यू आर नॉट बीइंग जज्ड कि अरे ये कैसे बोल रही है, इसको पता नहीं ऐसे होता है। नहीं, हमें वही तो ख़त्म करना है, वही तो हमें चेंज करना है। आई थिंक हमारी जो न्यू जनरेशन है, प्रॉबली दिस जनरेशन इज गोइंग टू चेंज, बट एट द एंड ऑफ द डे पेरेंट्स को भी अपने पे काम करना है। लेट्स नॉट फॉरगेट दैट। पेरेंट्स अपने आप पे काम नहीं करेंगे तो ये गैप बहुत बढ़ता जाएगा। There is a huge gap between the child and the parent. This is what I have witnessed. Huge gap. Children don't feel happy when they are at home with their parents. They want parents to be out of the house. या खुद ही भाग जाएंगे, या वो खुद ही भाग जाते हैं। वो 1 घंटा बोलकर जाएंगे, वो 3 घंटे 3 घंटे बाद आएंगे। 3 घंटे में आएंगे। एंड देन फिर कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन विल अराइज कि आपने 1 आवर बोला था, आप 3 आवर्स में आ रहे हो, तो उसको नहीं अच्छा लग रहा घर बैठना भाई, क्योंकि आपकी कॉन्स्टेंट नैगिंग चल रही है। आपका कम्युनिकेशन जिस एंगल पे हो रहा है वो ठीक नहीं है। स्पेस देना है, पर इतना भी स्पेस नहीं देना कि भी लूज देम। बैलेंस, दैट्स व्हाट आई सेड। बैलेंस ही तो नहीं है। बैलेंस ही तो हम मेंटेन नहीं कर पा रहे, हम एक्सट्रीम्स में जा रहे हैं बस। या तो टू जेंटल हो रहे हैं या टू फर्म हो रहे हैं, हम बीच का रास्ता तो ढूंढ ही नहीं रहे हैं ना। और कहीं ना कहीं वो प्रेशर सारा स्कूल्स में निकलता है कि आप लोग क्या कर रहे हो। एंड देन वी सॉरी टू से देन वी स्टार्ट ब्लेमिंग द स्कूल टीचर्स कर क्या रही हैं, वो हमारे बच्चे को पढ़ा नहीं रही हैं। बच्चे अपने मेंटली अपने आप को रिलैक्स फील नहीं कर रहा है, वो डेटा नहीं ले रहा, वो लर्न नहीं कर रहा, वो पढ़ाई नहीं कर रहा, और आप सीधा चले जाते हो स्कूल के पास, पेरेंट्स को आप लपेटे में ले लेते हो कि बच्चा पढ़ नहीं रहा है, व्हाट आर यू गाइज डूइंग, द चाइल्ड इज नॉट एबल टू कोप अप एंड ऑल। क्यों नहीं कोप अप कर पा रहा? क्यों? एक बच्चा स्कूल में कितने आवर्स स्पेंड करता है? कितने आवर्स? 8 to 9 आवर्स मैक्सिमम। बाकी के 16 घंटे वो घर पे बिता रहा है। वो एनवायरनमेंट घर का आपको फिक्स करना है, वो आपके पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगेन वी आर nowhere telling in these conversations you sit with the child, उसके सिर पे बैठ जाओ। नो, एक स्पेस दो, एक बैलेंस दो, एक कनेक्शन को मेंटेन करो, एक फिक्सिंग करो। टीच द चाइल्ड द वैल्यूज इन द करेक्ट मैनर। अगर वो कुछ गलत कह रहा है तो उसको बोलो कि दिस इज रॉन्ग। मे बी अगर आपको लग रहा है वो मौका ठीक नहीं है, देन फाइंड आउट अनदर टाइम। आई ऑफन टेल द पेरेंट्स कि अगर बच्चा एक अच्छे मूड में नहीं है तो उस टाइम पे उसको मत करेक्शन करो, डू इट लेटर, मे बी फ्यू आवर्स लेटर। अगर आप उसी वक्त इंस्टेंट करोगे तो डैमेज होता जाएगा, रिपेयरिंग नहीं होगी, डैमेज होगा। भाई जैसे अगर हम होम सिस्टम्स की बात करते हैं तो होम सिस्टम्स हम कहते हैं कि जो हेड ऑफ द फैमिलीज होती है, मदर फादर और नाना नानी दादा दादी, वो वही जो पैटर्न्स है वो डाउनवर्ड आते हैं, जो वो सिखाएंगे, जो बनाना चाहते हैं कल्चर वो बच्चा सीखेगा। सिमिलरली आई फील स्कूल में हम टीचर्स को बार बार ब्लेम करते हैं, बट पेरेंट्स हैव टू अंडरस्टैंड कि उनके ऊपर की भी तो हायरार्कीज है, मैनेजमेंट है। तो अगर हम ऊपर टॉप पे जाते हैं तो कहीं ना कहीं जो विजन जो क्रिएट कर रहा है, सो आई फील वो भी तो रिस्पॉन्सिबल systems को लेकर है। Yes, and they are also responsible. We have to work in that area as well. Very important. Very important. So blaming the teachers all the time, parents all the time. Executors. Yeah, they are executors. वो players है. Yeah, they are playing. They are playing. They have been given the tasks. They have been told कि आपको इस task को इस तरीके से करना है, and they are working accordingly. Yeah. So we have to work at the top level also. क्योंकि I've seen a lot of schools have started a lot of leadership programs जिसमें हम Shark Tank platforms है, a lot of events के कर रहे हैं। It's a very good initiative. Very good But then again we have to understand कि सिर्फ platforms आपको एक good presenters बना रहे हैं। You don't have to be good English speakers. Yeah. लेकिन आपको रियलिटी जो स्ट्रीट स्मार्ट है कि कैसे नेगोशिएट करना है, जब आप फेल हो जाते हो तो कैसे हैंडल करना है, वहाँ हमारा रोल आता है। तो बहुत इम्पोर्टेंट। Exactly. So communication is just one part of soft skills. Yeah. You just correctly talked about negotiation skills, presentation skills, anger management, people management, Team stress management. time management. Time management is Time very management, team important. management. Team management, very important. Very, very important. Personal management, emotional management. बहुत इम्पोर्टेंट Very important. क्योंकि फेलियर अगर आएगा कभी लाइफ में, क्योंकि देखो हर पेरेंट चाहता है मेरा बच्चा लीडर बने, कुछ अपना करे, स्कूल वाले भी ये प्रमोट करेंगे, व्हाई नॉट? एंड लीडर बनना इज नॉट बैड, ऑफ कोर्स एवरीबॉडी वुड वांट, बट वो बनने के लिए आपको पहले अपने आप को ट्रेन भी तो करना पड़ता है। और सबसे इम्पोर्टेंट है इमोशनल ट्रेनिंग। चाइल्ड आज की डेट में रिजेक्शन ले ही नहीं पा रहा है बच्चा, क्योंकि हम इस जनरेशन को क्या कहते हैं, गोल्डन जनरेशन, where we are giving everything on a golden plate with a golden spoon.
सब कुछ तो दे रहे हैं हम उनको, क्या चाहिए बेटा, आ जाएगा, ब्लिंकिट है ना, फ्लिपकार्ट मिनट्स है ना, एवरीथिंग विल कम राइट अवे, Amazon, हाउ कैन आई फॉरगेट दैट। पेशेंस तो खत्म। आप उनको क्यों हर चीज ला कर दे रहे हो, क्यों बच्चे को एक इमोशनली फील नहीं होने दे रहे कि अभी हम इस चीज को नहीं ला सकते, प्रोवाइड कर सकते, हम देंगे, राइट टाइम पे आने पे देंगे। आप क्यों हर चीज रेडिली अवेलेबल दे रहे हो। Can I talk about one more thing? Yeah, yes. We just talked about that the parents are talking about the anxiety. We just talked about that they are being anxious, they are overwhelmed, and they pass it on to the children, right? They are also passing on what all they have suffered in the childhood years. तो वो पता है क्या कर रहे हैं शीना, वो ये सब चीज़ें उनकी नीड्स क्यों पूरी कर रहे हैं कि हमारे को नहीं मिली हम इनको ला कर देंगे, पर वो डैमेज कर रहे हैं ना। उसमें भी बैलेंस होना चाहिए, क्योंकि हर पेरेंट का मन करता हुआ कि हमें ये नहीं मिला, इट्स तो ओके, हमें नहीं मिला, हमारी अपनी चैलेंजेस थे, आप दो, आप सब कुछ ला कर दो, बट आप एक तरीके से ला कर दो ना उसको। आप हर चीज़ उसको रेडिली दे दोगे तो आपने तो बच्चे को कभी फील ही नहीं कराने दिया कि रिजेक्शन नाम की चीज़ क्या होती है, व्हाट इज़ अ फेलियर, व्हाट इज़ अ सेटबैक। लाए जा रही हो, दिए जा रहे हो, लाए जा रही हो, दिए जा रही हो, क्यों? इज़न्ट दैट योर हार्ड अर्न मनी, है ना। आई नो सब कुछ बच्चों के लिए है, तो बट उसको दो एक राइट टाइम पे आने पे दो, मे बी बर्थडेज पे, स्पेशल ओकेजन्स पे, फेस्टिवल्स पे, उसकी अचीवमेंट्स पे, उसकी स्मॉल विन्स पे। हम क्यों हमेशा बिग अचीवमेंट की बात करते हैं। मे बी अ चाइल्ड पार्टिसिपेटेड इन अ कॉम्पिटिशन, वो नहीं जीता बट उसने पार्टिसिपेट करा, बेटा दिस इज़ फॉर योर कॉन्फिडेंस, वी रियली लव्ड यू परफॉर्मिंग ऑन द स्टेज, वी लव्ड वॉचिंग यू, दिस इज़ फॉर दैट। बट मम्मा पापा फॉर एग्जाम्पल अच्छाई से इसके मैंने तो कुछ जीता भी नहीं, आई वॉज नॉट इवन अ विनर, इट्स ओके। हमारे लिए आपका पार्टिसिपेशन इंपॉर्टेंट, ट्रू पार्टिसिपेशन, स्मॉल विन इज इक्वल टू अ बिग गिफ्ट, मे बी, व्हाई नॉट। आप देखो वो बच्चा कैसे पार्टिसिपेट करेगा आगे जाकर। आप हमेशा ये बोलोगे कि नहीं बेटा पार्टिसिपेट करो, अगर आप जीतोगे तो हम आपको किंडल देंगे, हम आपको फ़ोन देंगे, हम आपको एक्स देंगे, हम आपको वाई देंगे, क्यों? आप ये भी तो बोल सकते हो बेटा गो हेड पार्टिसिपेट, लेट्स जस्ट गो फील द वाइब। मैं अपनी क्लासेस में यही कहती हूँ, बेटा यू गेट एन अपॉर्चुनिटी, ग्रैब इट, फील द स्टेज, गेट द वाइब। नहीं जीतोगे ना, बहुत अच्छी बात है, वाइब तो सीख कर आओगे, लर्न तो कर कर आओगे, कुछ तो लर्न कर कुछ तो लर्न कर कर आओगे, एंड नेक्स्ट टाइम पे हम उसको कवर अप करेंगे, एंड देन विल ट्राई। सो सक्सीडिंग इन द राइट मैनर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बस रोकना, ऐसे करना, वैसे नहीं करना इज़ नॉट गुड। फादर लॉ से डिस्कस कर रही थी तो मुझे समझा रहे थे कि कॉइन की ना दो साइड्स होते हैं, हेड एंड टेल, और दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अभी तक हमने वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में बात करी, उनके इश्यूज और द थिंग्स वी नीड टू एड्रेस। नाउ वी टॉक अबाउट मेन, दे हैव देयर ओन प्रॉब्लम्स, दे हैव देयर ओन सफरिंग्स, एंड बचपन से ही हम उनको इमोशंस दबाने का सिखाया नहीं जाता है, बट यू नो वही वायरिंग है, पेरेंट्स की भी वैसी वायरिंग थी, और वो जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन है। बट आई थिंक इट्स हाई टाइम दैट वी शुड आल्सो चेंज। उनको भी तो देखो कहीं ना कहीं वो अपना सप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, चाहे वो काम की हो, चाहे वो इतने लेबल आ जाए कि तुम प्रोवाइडर हो, तुम प्रोटेक्टर हो, तुम ही सब कुछ देखना और करना है, वो भी उस ट्रैप में और वही इनविजिबल केज पे रह जाते हैं। तो व्हाट डू यू थिंक कि उसको कैसे that balance out करें? Yes, we have to see, I have already started working on this, as I told you that when it comes to a boy child or a girl child, मेरे पैटर्न सेम है, मेरे को दोनों को एम्पावर करना है, अपलिफ्ट करना है, उठाना है। बट द पेरेंट्स ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड कि एक बॉय को आप हमेशा एक प्रोटेक्टर, एक गुड डिसीजन मेकर का टैग नहीं दे सकते। अगर वो रो रहा है तो आप उसको प्लीज़ रोने दीजिए ना, अगर वो उदास हो रहा है उदास होने दीजिए। अगर आप बार बार ये लेबलिंग करते रहे, यू कैन बी वीक, यू कैन बी सेंसिटिव, कम ऑन, यू आर नॉट अ गर्ल, डोंट क्राई, यू हैव टू स्टॉप दिस। Men are suffering, trust me. If I talk about a lot of people whom I know in my circle, they are also struggling. And आपको पता है शीना वो struggles कैसे बाहर निकल कर आते हैं? They just start arguing with you for no reason. When they talk to you, अगर आप उनके साथ कोई पहलू डिस्कस कर रहे हैं तो वो एकदम गुस्सा हो जाते हैं, वो एजिटेटेड हो जाते हैं, एंड देन यू हैव टू टेल देम कि आप मुझसे क्यों ऐसे बात कर रहे हो। फिर आपको समझ आता है ये आ कहाँ से रहा है। सो कोई गलत और कोई सही नहीं है, बट हम अंडरस्टैंडिंग की और कम्युनिकेशन की कमी है, बहुत मेजर कमी है। फिर अगर आप किसी एक्स से डिस्कस करते हो कि उसने मुझसे ऐसे बात करी, तो वो नहीं तुम उसका बैकग्राउंड समझो ना, वो कितना ओवरवेल्म्ड है, उसको समझ नहीं आ रहा, तो वो तुम्हारे पे गुस्सा निकल गया। क्यों निकल गया मेरे पे गुस्सा? अगर हमें बोला जाता है बीइंग अ गर्ल दैट वी ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड, नॉट बी लाउडर, बी सॉफ्ट, तो आप एक बॉय को क्यों नहीं समझा रहे थे ये बात कि अगर आप
एकदम से हम कहते हैं ना कि गर्ल्स बॉयज का गुस्सा करना इज ओके, क्यों ओके? अगर उनका ओके है तो हमारा भी गुस्सा करना ओके। हमें क्यों हमेशा सॉफ्टर का टैग दिया जाता है और लाउड होने से रोका जाता है? सो इक्वालिटी कम्स देयर आल्सो। हाँ, क्योंकि अगर होम मैनेजमेंट लड़कियों को सिखाया जा रहा है तो सारा फिजिकल वर्क यस, वो सारा लड़कों को सिखाया जा रहा है, तो देखो कहीं ना कहीं इनइक्वालिटी तो दोनों जगह This एग्जिस्ट has करती been है ना। said by a researcher also that for your good mental health, it's very important that you allocate कुछ task house chore का to the children. चाहे वो गर्ल है चाहे वो बॉय है, आपको उनको एलोकेट करना बहुत जरूरी है, नहीं तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे समझेंगे? आप एक गर्ल को ही क्यों समझा रहे हो व्हाट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी? आप बॉयज को क्यों नहीं समझा रहे? आज हॉस्टल पढ़ने के सिर्फ गर्ल्स जा रही हैं, बॉयज नहीं जा रहे, है ना? बॉयज के साथ जाकर आप उनके हॉस्टल में उनके बेड के कवर्स लगाओगे, उनकी लिनन वॉश करोगे, उनके डर्टी लिनन पोटर कर मंगवाओगे। एंड सॉरी शीना, लॉट ऑफ पेरेंट्स आर एक्चुअली डूइंग दैट। बेटा आपको धोने की जरूरत नहीं है, पोटर कर देना, नहीं तो वील कम ओवर, हम वीकेंड की लॉन्ड्री ले जाएंगे और मंडे को आपको दे देंगे। क्यों? वाई मेन कांट टेक केयर ऑफ दोज थिंग्स? तो अगर हम उनकी स्ट्रगल्स की बात कर रहे हैं, उनके इनर बैटल्स की बात कर रहे हैं, हम उनको कह रहे हैं कि बोलो, रेज योर वॉइस, speak out if you're feeling sad, if you're feeling overwhelmed, speak up. At the same time, we also have to make sure कि हम घर के house chores की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी equality should prevail. बट ऑल्सो जब हम फिजिकल काम के बारे में बात करते हैं तो हम जनरली ना बॉयज़ को ही बोलते हैं कि यू आर द मैन, और तुम लड़के हो, तुम सारा करो, कहीं बाहर जाना है। ये बचपन से ही कहीं ना कहीं हम वायरिंग स्टार्ट कर देते हैं, तो उनको भी कहीं ना कहीं लगता होगा कि आई डोंट वांट टू डू इट, मेरे को नहीं जाना या मुझे फिजिकल वर्क नहीं करना, यू नो, आई डोंट फील लाइक डूइंग इट। तो उनके पास तो उनके लिए तो बैलेंस आउट ये हो जाता ना कि तुम लोग हमारा पेन नहीं समझ रहे, यू नो, दैट वी हैव टू गो आउट, मीट सो मेनी पीपल, वी हैव टू डील विद सो मेनी फियर्स, मेरे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी कॉन्सिक्वेंसेज भी मेरे को देखनी है, रिस्क भी मैंने लेना है, फैमिली का ध्यान भी मैंने रखना है, हेल्थ का भी ध्यान मेरे ऊपर प्रेशर है। तो मतलब इमेजिन हम नर्चरिंग उनसे एक्सपेक्ट फिर कैसे कर सकते हैं ना, हाँ। जब उनकी वायरिंग है ये, दे डोंट हैव टू शो देयर इमोशंस। अगर हम दिखाएंगे एंड और हम अपनी इंडियन सोसाइटीज में उनको पिलर और बैकबोन बोलते हैं, तो बैकबोन तो कभी मुड़ता नहीं ना, फिर उनको तो सीधा ही रहना। तो फिर आपको यहाँ कम्युनिकेट करना है ना, हाँ, तभी तो कम्युनिकेशन आ जाता है। नेक्स्ट जनरेशन में करना इम्पोर्टेंट है। ये नहीं कि आप उनको वीक बनाने की ट्रेनिंग दे रहे हो, बट आप बताइए ना, अगर आप फ्लेक्सिबल कर रहे हो। करेक्ट, अगर आपके फैमिली में कुछ इश्यूज चल रहे हैं, कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स चल रही हैं, कुछ भी आपको लग रहा है कि आपको बच्चे को बताना ज़रूरी है, उसको थोड़ा फिल्टर्ड वे में, मैं ये नहीं कह रही सेम टू सेम बताइए, उनको छोटे एज में इतना कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज दे आर फाइटिंग विद देयर ओन प्री टीन्स एंड टीन हार्मोनल चेंजेस एंड ऑल दोज थिंग्स। आप उनको उतना तो बताइए जितना रिक्वायर्ड है। अगर आप उनको कुछ बताएंगे नहीं तो बच्चा तो हमेशा एक गार्डन फुल ऑफ रोजेज एंड ट्यूलिप्स एंड डैफोडिल्स में रहेगा। उसको तो पता ही नहीं होगा कि भैया पेरेंट्स कहाँ स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि आपने हमेशा उनको अगेन हाफ इंफॉर्मेशन बताकर दी है, इस माइंडसेट से कि हम उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं कि पूरा बताएंगे तो शायद वो डर ना जाए, क्योंकि हमारे साथ वो लेबल्स अटैच्ड है ना कि हमें उनको प्रोटेक्टर बनाना है, हमें उनको एक डिसीजन मेकर बनाना है, हमें उनको ब्रेड विनर्स बनाना है। हम उनको ये नहीं समझा रहे कि हमें उन्हें एक इमोशनली रिजिलियंट चाइल्ड बनाना है। हमें उनको बताना है कि बेटा हमारी लाइफ में इश्यूज आ रहे हैं, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, हमें इस पे काम करना है, तो हमें मम्मा पापा को आपका बस इतना सपोर्ट चाहिए। मैं आपको कहीं भी ये नहीं कह रही कि आप फुल डाउनलोड करिए, बट आप कुछ फिल्टर डाउनलोड तो कर सकते हैं ना, जितना ज़रूरी है। फिर हम इमोशनल हैंडलिंग की बात करते हैं, फिर हम जब कुछ इंसिडेंट होता है तो हम कहते हैं, बच्चे को लेबल करना शुरू कर देते हैं, तुम तो हो ही ऐसे, यू आर अ स्टोन हार्टेड मैन, तुम बात ही नहीं समझते, तो बनाया भी तो तुमने ही ना, तुमने तो उसको कभी समझाया ही नहीं कि स्ट्रगल्स क्या होते हैं, किस तरीके से होते हैं। बस स्ट्रगल्स आए तो ये समझाया कि अंदर लेने हैं। क्यों? क्योंकि वो एक बॉय है? नहीं, वी हैव टू वर्क ऑन बोथ द जेंडर्स इक्वली, दैट इज इक्वालिटी, दैट इज इक्वालिटी। हमें की रिस्पॉन्सिबिलिटीज शेयर भी शेयर हो रहे हैं, हाउस चोर्स भी शेयर हो रहे हैं, इमोशंस भी शेयर हो रहे हैं। अगर if a parent is blessed with a boy and a girl, both the genders, I would say कि very good scenario। तो अगर आप गर्ल को, चाइल्ड को कुछ बता रहे हो तो मैं तो कहूँगी बॉय को भी बताइए ना, दोनों को बताइए, इक्वली बताइए। हाँ, अगर दोनों में एक एज कैप है तो उनके तरीके से बताइए, उनकी अप्रोप्रिएट लैंग्वेज में बताइए, उस वो कैप को यूज़ करिए जो उनसे रिलेट कर पाती है। मैं आपको ये नहीं कह रही कि आप 2 साल के बच्चों को अपना दुख बताइए, नहीं, मैं आपको कहीं ये नहीं कह रही। आप बच्चे को बड़ा होने दीजिए, पर उनको साइड बाय साइड इन चीज़ों की ट्रेनिंग करना बहुत ज़रूरी है।
Kids are very smart these days and kids observe बट faster. एट द सेम टाइम आई फील कि बच्चों को अपने पेरेंट्स को अप्रिशिएट करना भी बताना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज जो भी हो आप लोग, यू नो, वट एवर यू आर डूइंग, गेटिंग, यू हैव दोज विंग्स टू फ्लाई, इट इज बिकॉज ऑफ योर पेरेंट्स. Absolutely. तो कहीं ना हम सिर्फ प्रॉब्लम्स देखते देखते भूल जाते हैं कि हमें उनको अप्रिशिएट भी तो करना है. दे आर करना ऑल्सो ह्यूमन बींग्स, वो भगवान तो है नहीं. Correct, उनकी भी तो लाइफ है जो वो जीना चाह रहे हैं और उड़ना चाह रहे हैं. उनके भी कुछ एम्बिशियस थे जो वो नहीं कर पाए क्योंकि दे हैड अ किड, तो उन्होंने सारा अपना टाइम, रिस्पॉन्सिबिलिटी, सब कुछ अपने बच्चे के लिए करना शुरू कर दिया. बट वो भी तो फ्री होना चाहते हैं ना. वो भी तो कहना चाहते हैं कि हाँ यार अब हो गया है, मैंने पढ़ा दिया, सब कर दिया, आई वांट टू डू व्हाट आई want to do. Acha, that brings a very interesting angle to this. I have been getting a lot of requests from the adult clients and जिनके बच्चे कॉलेज में जा रहे हैं या next 2 years में जाने वाले हैं. Now they want to regain their confidence. है ना? No, Wow. we have done a lot. Now it is our time to work on ourselves. And मैं कहती हूँ very good यार. That self-thought itself is so beautiful. कि कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस लूज होने लग जाता है. बट वो बोल रहे हैं, वो बता रहे हैं कि वी आर लूजिंग आवर कॉन्फिडेंस. दे लूजिंग देमसेल्व्स. Yeah, वो अपना एक पार्ट हर करेक्ट 4-5 साल बाद दिए जा रहे हैं. वो दिए जा रहे हैं, पर नूपुर अब हमें अपने लिए जीना है. वेरी गुड यार, वी विल वर्क टुगेदर, वी विल को क्रिएट दिस एनवायरनमेंट और आपको मैं खड़ा करूंगी. एंड आई लव दोज जर्नीज. मुझे ऐसे क्लाइंट्स के साथ काम करने में शीना पर्सनली बहुत मजा आता है. आई लव वर्किंग विद दीज क्लाइंट्स where they come क्योंकि देखो आप एडल्ट हो तो आपको पता है कि ये प्रॉब्लम हो रही है, ये हो रहा है, ये हो रहा है. वहाँ पर काम करने में भी और मज़ा आता है. तो आपको पता है जब भी मैं किसी क्लाइंट से मिलती हूँ, मेरा हमेशा ये रहता है कि फर्स्ट सेशन एंड 2 सेशंस विल ओनली बी अबाउट रैपो बिल्डिंग वेयर आई अंडरस्टैंड देम. तो मैं भी तो उनको अंडरस्टैंड कर रही हूँ ना. आई एम बीइंग एम्पैथेटिक, आई एम हेयरिंग देम, आई एम रिस्पेक्टिंग देम, आई एम ऑनरिंग देम. तभी वो बच्चा या वो चाइल्ड या वो एडल्ट बाहर निकल कर आता है. एंड 3rd 4th सेशन पे हमारा असली काम शुरू होता है. शीना, मुझे जब कॉन्फिडेंस इन कम्युनिकेशन की बात आती है, आई हैव बीन आस्क्ड दिस क्वेश्चन कपल ऑफ टाइम फ्रॉम लॉट ऑफ पेरेंट्स, वेदर इट्स अ बॉयज पेरेंट और अ गर्ल्स पेरेंट, पर कितने टाइम तक हमारा बच्चा रेडी हो जाएगा. ठीक है, सॉरी, आई एम सेइंग इट ऑन योर पॉडकास्ट. आई पर्सनली dislike this question. It's a strong word, but I dislike this. I said sorry, मैं आपको टाइम फ्रेम नहीं दे सकती. जो काम आप नहीं कर पाए, आप मुझसे एक्सपेक्ट कर रही हो मैं वो 6 क्लासेस में कर दूंगी. आई एम नॉट द राइट पर्सन फॉर यू. ट्रू. आपने बच्चे को मुझे अभी दिया, अभी तो हमारी रैपो बिल्डिंग शुरू हुई. इसका मतलब ये तो नहीं शीना मैं इस बच्चे को 12 साल अपने पास रखूंगी. ऑफ कोर्स नॉट ना. ट्रस्ट तो मेंटेन करो यार. गिव मी सम टाइम. आप मुझसे एक्सपेक्ट करोगे कि मैं आपको एक फिगर दे दूं. हर चीज हमेशा फिगर नहीं होती है. आप मुझसे कहोगे 6 क्लास, हमारे पास 6 क्लासेस का टाइम है. शीना मैं उनके मुंह पे बोलती हूँ, आई हैव रिजेक्टेड सो मेनी पेरेंट्स राइट ऑन देयर फेस. Sorry, then I will not be able to work. I think I'm not the right person for you. You need to look out. Why Nupur? कितना टाइम चाहिए? मैंने कहा इतना टाइम, मुझे टाइम चाहिए. I need minimum 3 to 4 months. मुझे टाइम चाहिए है. मैं एक कंस्ट्रेंट के साथ काम नहीं कर सकती. आप मुझे एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो. आप मुझे सिर्फ कम्युनिकेशन के लिए बच्चा दे रहे हो. बट शीना मैं कम्युनिकेशन पे काम नहीं करती हूँ. मैं सारे सेगमेंट्स पे काम करती हूँ. मैं उसकी रेजिलियंस पे काम करती हूँ. मैं उसकी इमोशनल इंटेलिजेंस पे काम करती हूँ. एकेडमिक इंटेलिजेंस कौन देख रहा है, वो मेरा पार्ट नहीं है. अगर आज मैंने उसको इमोशनली स्ट्रॉन्ग कर दिया शीना, एकेडमिकली वो बच्चा विल गो प्लेसेस. स्काई इज द लिमिट फॉर दैट चाइल्ड. अगर मैंने उसको सेल्फ बिलीफ सिखा दिया तो आधा काम तो मेरा वहीं हो गया. बट ये भी हो सकता है कि पेरेंटिंग में जब हम देखते हैं, क्योंकि हमारे पास सोशल मीडिया आ गया, इतना एक्सपोजर आ गया, तो हम देखते हैं कि अच्छा ये क्लासेस भी अवेलेबल है, वो क्लासेस भी अवेलेबल है, यहाँ पर भी मैं अपने बच्चे को भेज सकता हूँ या सकती हूँ, ये भी करवा दूँ, वो भी करा दूँ. तो कहीं ना कितने ऑप्शंस होने के बाद हम व्हाट आर वी ट्राइंग टू अचीव? या तो आप एक आधा चीज करा रहे हो, बट मे बी इट इज कंपैरिजन. I think it's FOMO. It's the FOMO. FOMO is for real. FOMO is for कि real. उसके बच्चे को इतनी लैंग्वेजेस पता है तो मेरे बच्चे को भी That day, sorry for the interruption, but I think you'll like this statement. Abhi, that day I had this meeting with one of my clients, and that student actually said that, "Ma'am, I want to appear for this exam, and for this exam." क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है मैंने किसी के लिए भी तैयारी नहीं कर रही है. बेटा आप क्या करना चाहते हो? फोमो इफेक्ट रियल? मैंने कहा आपको फोमो तो नहीं हो रहा है? हाँ एग्जैक्टली मुझे वही हो रहा है.
तो ये जो प्रेशर्स है ना, ये हमारी सोसाइटी ही क्रिएट करी जा रही है डूम स्क्रॉलिंग होने लग गए ना आजकल बहुत ज्यादा, तभी कि तो- आप तभी देखे तो- जा रहे हो और आपको yes, ये अच्छा लग रहा है, यहाँ सब लोग गए तभी तो वेकेशन, आपके अब सोशल मीडिया पे डिपेंड करने डिपेंड लगे। करता है। एक्स ने CUET की कोचिंग ज्वाइन करी है, वाई ने IT मैक की करी है, जी ने GI की करी है, एक ने नीट की करी है, और मैंने कोई नहीं करी तो मुझे करनी है। क्या आपको एक्चुअली में करनी है? पहले आप अपना गोल देखो, वो क्या है, आप बनना क्या चाहते हो, वेयर आर यू। इतने हम छोटे बच्चे को इतने ब्रांडेड कपड़े लेकर दे देते हैं, बट मेरी ओपिनियन में मुझे लगता है कि हम उनको फ्रीडम इन द सेंस उनको बाहर पार्क में लेकर जाकर मिट्टी में छोड़ देना और उनको खिलाना इज वे मोर इम्पोर्टेंट एंड बाइंग देम अ सेट ऑफ ब्रांडेड क्लोथ्स। नहीं, बट वो शीना सी हम इजियर टास्क अडॉप्ट कर रहे हैं। वो सबसे इजी काम है हमारे लिए। गाड़ी में ले जाना, उनको ब्रांडेड कपड़े दिलाना, उनको फूड कोर्ट से खाना दिलाना, या some maybe some continental and Italian brands, and the day is done, the day is sorted. And when I asked them, connection कहाँ था ना, हम गए तो थे, weekends पे we were out. Was that connection? वो जो बाहर जाकर क्या ह्यूमन अब- टच और बच्चों से Exactly. मिलना, पेरेंट्स से मिलना, Conversations करी आपने, कब बैठकर उनसे आमने सामने बात करी, कब बैठकर उनके साथ मूवी देखी, कब बैठकर उनके साथ पार्क में रनिंग करी, जॉगिंग करी, आपने करा ये सब? कब उनके साथ बैठकर आपने खूब सारे प्लेटफॉर्म्स के बारे में बात करी? या फॉर एग्जांपल, अगर आपको एक बच्चे को फूड प्लस पसंद है, he or she is a foodie, did you literally sit with that child and talked about those platform where we can get good food, from where we can order, where we can go? क्या वो कॉन्वर्सेशन करी? आप तो सबसे इजी काम करते हो ना, जोमेटो पे गए, स्विगी पे गए, टिक करा बेटा हमारा डेबिट कार्ड एडेड है, क्रेडिट एडेड है, कर दो, OTP आ जाएगा, हम आपको दे देंगे, काम हो जाएगा। और फिर आप कह रहे हो हमने करा ना, हमने उनके लिए बेस्ट टू बेस्ट ब्रांड से खाना मंगवाया। Was that the connection? खाना तो घर पे भी मिल जाएगा। और फिर जब हेल्थ पे आता है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस कहीं ना कहीं पेरेंट्स को ही लेने पड़ते हैं। फिर हम कहते हैं कि कैसे हो गया। आजकल हम हेल्थ को कैसे भूल सकते हैं? चिल्ड्रन दीज डेज आर सफरिंग विद डायबिटीज, विद थायराइड, विद PCOS, PCOD, and why? Because of the processed foods, easy foods. Parents are struggling on that front also. न्यूट्रिशन का भी हमें बहुत ध्यान रखना है। अगर न्यूट्रिशन भी अच्छी नहीं रहेगी तो बच्चा बहुत इरिटेटेड फील करेगा, बिकॉज उसकी बॉडी डिमांड कर रही है गुड न्यूट्रिशन। अगर हम उस पर भी काम नहीं करेंगे, जंक डाले जा रहे हैं तो वो तो और इरिटेटेड फील हो रहा है। तभी आप देख लो ना, प्री टीन्स का मतलब क्या होता है? 12, 11, 10 प्री टीन सिम्टम्स these days are visible at the age of 8, 9. Don't you think that's too early? Too early. पहले हम टीनेज ईयर्स को सेलिब्रेट करते थे, रिमेंबर? हम कहते थे बच्चा आज 13 का हो गया, इट्स अ बिग बर्थडे, एंड देन 18 इट्स अ बिग बर्थडे, 16 इट्स अ बिग बर्थडे। नाउ वी आर सेलिब्रेटिंग द 10th birthday more than the 11th and the 12th. Why? It's the 10th birthday, and then it will be because आज से हम डबल डिजिट हो गए, हम इसको सेलिब्रेट करेंगे। मैंने तो ये तक सुना डबल डिजिट हो गए, सो व्हाट? डबल डिजिट हो गए, सो व्हाट? एवरी बर्थडे शुड बी सेलिब्रेटेड नाइसली। बस क्यों करना है? क्योंकि सोसाइटी के टैक्स को फॉलो करना है, क्योंकि एक्स ने 10th बर्थडे करा है तो मैं भी करूँगा, फिर उसने सीधा 13th करा तो मैं 13th फॉलो करूँगा, फिर उसने 16th करा तो मैं अब 16th फॉलो करूँगा। क्यों? आपका खुद का दिमाग नहीं है? Is it very important to celebrate that 10th birthday with pomp and show, or is it okay to just celebrate all the birthdays the way you actually want them to be, rather than following the stigmas? नहीं, whatever the child wants, maybe he wants to go out Yes. for some Yes, absolutely. play zone, or only 2-3 friends के साथ he wants to sit down. जो भी एक 10 से 11 से 12 साल का जो बच्चा होता होगा, you have to observe कि वो क्या चाह रहा है, उसकी फेवरेट चीजें क्या है, वो क्या करना चाह रहा है या चाह रही है, and then do something. Yes, give them 2-3 choices. Beta, what is in your mind? Again, Sheena, communication आ गया ना? Communication. Again, communication हम करना ही नहीं चाह रहे क्योंकि हमारे पास टाइम ही नहीं है। टाइम नहीं है और हम चूज भी तो नहीं कर रहे ना, हम ये चूज कर रहे हैं कि लोगों को क्या अच्छा लगेगा। We are trying to satisfy them. Yes, और जो सोसाइटी में चल रहा है, क्योंकि अगर छोटा सेटअप बर्थडे कर लिया तो कहीं ना कहीं क्वेश्चनिंग हो जाएगी ना, अच्छा they can't afford, और अच्छा they cannot afford it, and then we'll start, हाँ they probably they couldn't afford it this time, and so confidence भी आ जाता है इसमें। अगर कर रहे हो तो कॉन्फिडेंस के साथ करो ना। This is what how my child wanted to celebrate. बच्चे से पूछो बेटा आप कैसे बर्थडे बनाना चाहते हो? मे बी वो सिर्फ अपने लव्ड वंस के साथ जाना चाहते फॉर अ मूवी, and then probably a lunch or a dinner outside with those small group of friends, rather than having a big birthday bash. Maybe वो next year करना चाहते हैं। सुन तो लो वो चाहता क्या है।
ये जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग है, सो डू यू थिंक इसका कोई सोशल लोग क्या कहेंगे लेबल से कुछ रिलेशन है, या फिर ये इनहेरिटेड होता है? Sheena, it is definitely not inherited. It is Built. you. It is being built. हाँ. And it is you who creates that confidence. It's all about you story. अगेन आपका इकोसिस्टम, आपका एनवायरनमेंट, आपकी एनवायरनमेंट की फिक्सिंग ही। अगर देखिए, अगर स्कूल आपको कहेगा, एक अपॉर्चुनिटी देगा स्टेज पे बोलने की, ठीक है, आपने बोला, पेरेंट्स ने कहा हाँ बेटा जाओ पार्टिसिपेट करो, ठीक है, जब बच्चा घर पे आया, बेटा आपने कैसे बोला था? आपने पहले उसको बोला स्पीक अप, फिर आपने उसको जाकर रेक्टिफाई करा, बेटा आपने कैसे बोला था, आपने ठीक से बोला ही नहीं, यू वर नॉट कॉन्फिडेंट एट ऑल, वी विल स्पीक टू नूपुर मैम दैट योर कॉन्फिडेंस इज स्टिल नॉट शोइंग अप। तो आपने उसको वहीं डिसहार्टन कर दिया, उसके कॉन्फिडेंस को वहीं आपने नीचे गिरा दिया। रादर देन पुटिंग इट दिस वे, इट्स ओके, दैट्स नॉट बैड बेटा, यू डिड अ गुड जॉब, मोर प्लेटफॉर्म्स विल कम, मोर विल बी वर्किंग ऑन इट। तो ये वही फाउंडेशन है कि फाउंडेशन कैसे स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनका कॉन्फिडेंस कैसे अगर strong स्कूल करना है। क्रिएट कर रहे हैं और आप उसको गिरा रहे हो, राइट, आप क्रिटिसाइज कर रहे हो, घर क्रिएट कर रहा है, स्कूल गिरा रहा है, वो इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है, बच्चे का कॉन्फिडेंस वहीं शैटर हो रहा है, वहीं खत्म हो रहा है। Children these days are so hooked up to screen. Screen addiction is for real, right? They are not even aware how to stand on the stage. They don't even know how to talk to somebody in person. उनको बात करना नहीं आ रहा है शीना. They are really not अंडरस्टैंडिंग कि एक हमें आमने सामने किसी क्लाइंट से कैसे बात करनी है, क्योंकि फोन बहुत ज़्यादा है, स्क्रोलिंग होती जा रही फिर आप इतनी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, कंफ्यूज हो जाते हो, देन यू वांट, मुझे ह्यूमन टच चाहिए, फिर वो आपके पास आते होंगे कि हम क्या करें, हम क्या करें, कंफ्यूज्ड। नूपुर बच्चा रूम के अंदर बैठा रहता है, वो बात नहीं करता है, इट्स ओके, सम ऑफ द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट लीडर्स आर इंट्रोवर्ट्स, देयर इज नथिंग रॉन्ग टू बी एन इंट्रोवर्ट, बट आई ऑलवेज टेल देम बेटा अगर आप अपॉर्चुनिटीज़ को नहीं लोगे, वो मिस होती जाएंगी, देन इट इज़ समथिंग रॉन्ग वेयर वी नीड टू वर्क। It's okay not to speak, but it's not okay not to, picking up the platforms. है ना? It's not okay if something wrong is happening and you are not saying a big no. You're not talking about it. You're not speaking about it. Then it is not okay. आप बैठे रहोगे, आपको बुखार है, आप मॉम को नहीं बता रहे, आप बड़े हो गए, उनको नहीं पता आपको फीवर है, आप पढ़ते जा रहे हो एंड देन एकदम से आप क्रैश हो रहे हो, एंड देन यू टेल योर पेरेंट्स कि मुझे तो कल से 101 फीवर था। यार बताते थे ना, एक बार ही बोल देते, नहीं आई डोंट लाइक टू टेल देम, आई डोंट लाइक टू बॉदर देम, दे आर ऑलरेडी सो ओवरवेल्म्ड विद देयर ओन वर्क, देयर जॉब्स, देयर फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज। नो मैम मुझे तब नहीं करना था। बेटा ये तो गलत हुआ ना। तो मैं पेरेंट्स को, आपको पता है कई बार ये क्या कहती हूँ कि वॉच देम, keep observing them, because teenage these years we cannot just leave them alone in a room. आप बहाने से कर कुछ ना कुछ कर आप उनको खाना देने जाओ, आप उनसे मिलो या बात करो, या उनको कुछ भी करते कुछ बहाने से करो। आइसोलेशन ज़्यादा हो रही है because of social media. Yes, but that doesn't mean कि you keep knocking at the door after every 10 minutes. आपको पता है बच्चे आजकल अपने रूम के दरवाजे के बाहर एक बहुत बड़ा नोट लिखा रहे हैं, प्लीज नॉक बिफोर यू एंटर, don't disturb between 2 to 5 p.m., 2 p.m. to 5 p.m. Yes, they're doing that. And it is for real. They tell me these stories. I'm requesting them that please don't lock yourself. Please, it's not a good thing. Don't do that, beta. Don't do that. You don't know what goes inside a parent's mind. अगर आप डेटा फीडिंग करें तो कहीं ना कहीं से वो भी डेटा उठा रहे हैं। We are seeing the teenage suicides and these pressures, academic pressures, IT में हम देख रहे हैं क्या हो रहा है। There are so many cases which are being suppressed जो हमारे पास निकल कर नहीं आ रहे हैं। हम IIT को बार बार लाइमलाइट में लेते हैं, but they are also happening in various other universities, क्योंकि वो किससे कभी भी बाहर नहीं आएंगे। क्यों? फिर बाद में पता चलता है through an ex person and a by person, he was very weak, he was emotionally not strong, he couldn't cope up with the academic pressure. अब बताइए शीना, इमोशनल इंटेलिजेंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एकेडमिक इंटेलिजेंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? Obviously, emotional intelligence, it comes way before than the academic intelligence. आप पढ़ाओ, आप सब कुछ करो, उनको गुड स्कूल में डालो, बट प्लीज़ बेस फाउंडेशन पे पहले काम करो, बिहेवियर्स पे काम करो, बहुत ज़रूरी है। मेरे पास तो ये भी कई बार किस्से आते हैं कि नो जस्ट टीच देम गुड मैनर्स। if somebody comes home, they don't greet that person. वो खड़े होकर बात भी नहीं करते हैं, विश भी नहीं करते हैं, they just leave the room. आपको क्या लग रहा है शीना, मैं अपनी 2 क्लासेस में ये बात समझाऊंगी और बच्चा समझ जाएगा? Not at all. Is it my responsibility?
आपने तो मेरे को पूरा प्रेशर दे दिया, ओवरवेलम कर दिया। कहानी कहाँ से शुरू हुई थी? कम्युनिकेशन एंड कॉन्फिडेंस की। कहाँ पर हम आ गए? डिसिप्लिन, मैनर्स। आपको पता है हम हाइजीन के बारे में भी बात करते हैं। कई बार मेरे पास कुछ ऐसे भी आजकल, आई डोंट नो आई शुड बी टॉकिंग अबाउट दिस और नॉट, चिल्ड्रन दीज डेज डोंट लव टू टेक शावर, दे डोंट लाइक ब्रशिंग द टीथ। दीज आर वेरी बेसिक हाइजीन, दे डोंट लाइक डूइंग इट। उनको नहीं अच्छा लगता। वो कहते हैं मैम इससे टाइम बहुत वेस्ट होता है। अरे मैम हम पढ़ाई कर रहे थे, पढ़ना भी तो है ना, स्कोर भी तो लेकर आना है। अरे बेटा इतना पढ़ाई कर रहे थे कि आपके पास 35 सेकंड्स ब्रश करने के लिए भी नहीं है, गिव मी अ ब्रेक। दैट डे आई वेंट टू अ डेंटिस्ट विद माई सम डेंटल प्रॉब्लम। आपको पता है उन्होंने मुझे क्या बोला? नूपुर आप कहीं ऐसा ब्रश तो नहीं कर रहे कि 500 मीटर्स पे जो बंदा खड़ा है उसको पता चल रहा है नूपुर इज ब्रशिंग हर टीथ। आई सेड या हाउ डू यू नो? कहते आपका एनामल स्क्रैप हो रहा है, ओरिजिनल एनामल स्क्रैप हो रहा है। आई सेड या दैट्स मी। शी सेड आर यू मैड? There is a technique to brush your teeth. You shouldn't be taking more than 30 to 35 seconds. That's the standard. Can I request you to stop doing what you have been doing in the past? I said, oh, I'm so sorry. I'll be very careful. She said, you better be. Otherwise, you're going to be in a big trouble. जब यही किस्सा मैंने अपने बच्चों को समझाया कि बेटा 30 सेकेंड्स 35 सेकेंड्स क्या ये बहुत ज़्यादा है? नो मैम। फिर क्यों नहीं मैम, माउथ वॉश है ना, वी आर यूजिंग इट, ट्रस्ट मी, आई स्वेयर हम वो यूज कर रहे हैं। आई सेड आर यू मैड? और आपको क्या लग रहा है वो अचानक से उनको हैबिट ये हॉस्टल में जाकर आ गई? नो शीना, दिस हैबिट वाज बिल्ट राइट एट होम, राइट इन फ्रंट ऑफ योर आइज, एंड इट वाज बीइंग अननोटिस्ड बिकॉज व्हाई? यू वर बिजी, you were not aware, you were not present. You were present to take them to the malls, making them buy the branded clothes, taking them to the best of the hotels and the restaurants and the cafes, right? You were present maybe somewhere else. But आप basic चीज़ों में present नहीं थे। ये चीज़ें आप 19-20 years की एज में ऐसे उठकर develop नहीं होती हैं। और जब उनका इतना फॉर्मेशन हो जाता है, उनका एक माइंडसेट हो जाता है, they know what is right It's very and wrong. difficult. Yeah, It's very important to have a growth Deep mindset. conditioning हो गई ना पिछले कई सालों से। That growth mindset needs to prevail, but we are still running with a fixed mindset. अब उठना है, अब जाना है, अब ये करना है, वो करना है, गेस्ट आया है उनको ग्रीट करना है, उनको पानी देना है, सब करना है। मैं खुद ये करती हूँ तो मैं क्यों नहीं अपने स्टूडेंट्स को बोलूँगी ये करने के लिए, राइट? बट देन इट हैज़ टू बी डन नाइसली। यू हैव टू टेल देम प्रॉपरली। डोंट बी एन अथॉरिटेटिव पेरेंट, डोंट बी दैट कि ऐसा नहीं ऐसा करो, डोंट डू दैट ना। टीच देम, धीरे धीरे प्यार प्यार से समझाते जाओ बस, और बढ़ते जाओ आगे। बिल्कुल बिल्कुल सही था। आई थिंक जैसे क्वेश्चन था कि आजकल पेरेंट्स होते हैं कि हम फ्रेंड्स हैं, तो आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं लाइन बाउंड्री सेट होना चाहिए, या फिर पेरेंट को, तब पेरेंट को पेरेंट होना चाहिए या पेरेंट को फ्रेंड बनना चाहिए? क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा फ्रेंड बन रहा है शायद, इसलिए नहीं, बाउंड्रीज आर इम्पोर्टेंट। यस यस, या या इवन आई फील सो बाउंड्रीज आ रहे हैं। बाउंड्रीज आर इम्पोर्टेंट। आपको क्या लगता है कि बाउंड्रीज आर इम्पॉर्टेंट? नहीं तो यू नो पेरेंट्स हैव दिस माइंडसेट कि हम जितने फ्रेंडली होंगे अपने बच्चों के साथ उतना हमारा रिलेशनशिप कम्युनिकेशन बेटर होगा, बट कभी कभी वो बैकफायर भी करता है। So do you कभी think कभी boundaries are नहीं important? शीना, आई वुड से 100% वो बैकफायर करता है। 100% it backfires. There has to be a boundary. Let friends be friends, let parents be parents, right? Backfire करता है, बिल्कुल करता है। मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताती हूँ वो बैकफायर करता है। No, we are just friends. They can say anything to us. It's okay, but they should also know किससे कब क्या बात करनी है। If there are certain adult series coming on Netflix and Amazon Prime, if you're not comfortable watching in front of your child, तो आप उसको क्यों लगा रहे हो at the first place? और आप कह रहे हो हम फ्रेंड्स हैं, हम कुछ भी देख सकते हैं एक साथ। नहीं, वो गलत है ना। आप देखो, हम मना नहीं कर रहे हैं, बट आप पहले देखो तो सही वो बच्चा कहाँ तक पहुँचा है। इज दैट पर्सन बच्चा ऑलरेडी a fully grown adult, maybe a 20, 21 and 22, then it's okay. बट अगर आप उसकी ग्रोइंग अप ईयर्स में 9, 10, 11 and 12 के एज में ये सब काम एक साथ करें, हम फ्रेंड्स हैं ना, हम इकट्ठा देखेंगे, हम फ्रेंड्स हैं ना, हम ये भी करेंगे, हम कैफेज भी जाएंगे, हम गेम्स भी खेलेंगे, खेलो, बट बाउंड्रीज मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है यार। आप फ्रेंड्स रहने दीजिए, पेरेंट्स को पेरेंट्स रहने दीजिए। मे बी वो जो बाउंड्री का माइंडसेट है कि विद पेरेंट्स होना इसलिए इम्पोर्टेंट है कि इवेंचुअली जब बच्चा आपका बड़ा होता है, यू नो व्हेन ही गोज़ आउट, उसका एक्सपोजर स्टार्ट होता है, मैरिज होती है, तो मे बी दैट टाइम इट विल हेल्प। क्योंकि तब ना पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन होती है कि हमने तो अपने बच्चों को अपने पास रखा है फ्रॉम लास्ट
30 years और अभी तक हमारे बीच में कोई बाउंड्रीज नहीं है. It's a boundary-less relationship. We share everything. But maybe after some point वो शायद मैटर करने लग जाएगा जहाँ पर यू फील कि बाउंड्रीज नहीं है लेकिन मैं सब कुछ शेयर नहीं कर सकता या कर सकती. यू नो आई एम माई ओन लाइफ टू. मे बी आई फील ये शायद मैरिज के बाद ज़्यादा रियलाइज होता है. Marriage or your friends, you don't want to share your personal conversations within your friend circle to your parents. नहीं तो वो सोचेंगे कि अच्छा ये ऐसी बातें कर रहे हैं तो कहीं गलत डायरेक्शन. यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट कि कुछ भी आप गलत सोच सकते हो उससे. बिल्कुल आप सोच सकते हो. तो बाउंड्रीज मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है. वैल्यू सिस्टम पे काम करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपके फ्रेंड्स आपको वैल्यू सिस्टम नहीं सिखाएंगे. मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा ये भी बोलती हूँ कि बेटा आप पीयर प्रेशर के इन्फ्लुएंस में इतना मत आओ. है तो वो भी पीयर ही ना. लर्न तो वो भी कर रहे हैं आपकी तरह. वो आपको गाइड नहीं करे. हाँ तो आप अपना दिल हल्का करें. You are just yourself with your friends. I call parents as 24/7 helpline and the children start laughing. I said वो Blinkit की तरह 24/7 helpline है आपकी. आज की डेट में अगर आप ट्रबल में होंगे, मेस में होंगे, आपको आपके फ्रेंड्स आपका शायद फ़ोन नहीं उठाएंगे, but the parents will be the first one to pick up your call. और आज ये वही पेरेंट्स हैं जिनके बारे में बोल जाते हैं ये विलन है, वो हीरो है. मम्मा इज़ अ विलन, डैड इज़ अ हीरो. Nowadays mothers are always the villains of the house and the dads are the heroes of the house. तो आप देख रहे हो कहीं ना कहीं मदर एंड फादर में भी एक बैलेंस नहीं है. बच्चे अपने पेरेंट्स को देखते हैं वो कैसे बात कर रहे हैं, कैसे आर्ग्यू कर रहे हैं, कैसे वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज शेयर कर रहे हैं. चिल्ड्रन आर ऑब्जर्विंग. वी हैव टू क्रिएट दैट स्पेस एट होम फर्स्ट. आपको एज अ पेरेंट, एज अ मदर एंड अ फादर पहले खुद सेम पेज पे आना है. अगर आप डिफरेंट पेसेस में रहेंगे, डिफरेंट पेजेस में रहेंगे, तो आप बहुत रॉन्ग मैसेज उस बच्चे तक पहुंचा रहे हैं. A wrong message is being going to that child. But you know, I don't agree with this fact that यहाँ पर हमें जो जैसे tags दी that fathers are the heroes और mothers are the villain. कभी कभी रिवर्स भी हो जाता है. No, it all depends on the systems कि हम क्या create करना चाह रहे हैं. कभी कभी क्योंकि you know mothers are emotional. तो ना हम हमेशा हमारा ये human psychology वहाँ उस चीज़ को फ्रेजाइल जो है, जो इमोशनल सपोर्ट ज़्यादा मांगता है, जो सेंसिटिव होते हैं, जो उनकी वायरिंग हुई है, आई एम नॉट ब्लेमिंग देम. तो वहाँ ना आपको तरस आने लग जाता है दैट दे नीड अ प्रोटेक्टर और अ प्रोवाइडर. तो आप कहीं ना कहीं उनका साइड लेते हो. हाँ, तो बैलेंस में भी तो कर सकते हैं ना. हाँ बैलेंस कर सकते हैं. तो क्रिएट करना पड़ेगा. एग्जैक्टली. तो लेकिन फादर की तो वायरिंग ऐसी हुई है, स्ट्रॉन्ग रहना है, नहीं दिखाना है. तो यू नो कहीं ना कहीं बच्चा देखता है कि यार एक बहुत इमोशनल है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग बोलो या फिर वायरिंग ये है कि इमोशनली. तो इट्स इम्पोर्टेंट ना कि आप दोनों वो भी खुश नहीं है, दोनों खुश नहीं है. ऐसा नहीं कि हीरो खुश है, विलन खुश है. बोथ ऑफ देम आर नॉट हैप्पी. तो हीरो एंड विलन क्यों नहीं एक साथ एक कमरे में बैठकर पहले बात कर लेना कि दिस इज गोइंग राइट एंड दिस इज नॉट गोइंग राइट. So nobody is hero, nobody is villain. It is just that आपके पेरेंट्स दो पहले खुद तो सेम पेज पे आ जाओ. Then only you will pass on the right message. बच्चे को लेकिन ये समझाना जरूरी है कि आपके पेरेंट्स हैं वो इम्परफेक्ट भी हो सकते हैं क्योंकि हमने तो उनको वायरिंग दी है ना कि हम परफेक्ट है. हम जो कह रहे हैं ना वो ठीक है तुम्हारे. बट नो दैट्स नॉट करेक्ट. We are teaching the children with our own experiences. There's no word like perfect parenting. And there's no word like a perfect person. ठीक है. perfect कुछ भी नहीं है लाइफ में. सभी इम्परफेक्ट. सभी इम्परफेक्ट है. हम लोग खुद सीख रहे हैं. आई कॉल माई सेल्फ एज अ डेली लर्नर और डेली मतलब जो मैं एवरी डे अपनी लाइफ से सीख रही हूँ. आई नेवर स्टॉप लर्निंग. आई कीप अपग्रेडिंग बिकॉज आई बिलीव इन दिस. इफ यू आर नॉट अपग्रेडिंग योर सेल्फ यू आर कम्प्लीटली आउटडेटेड. ठीक है. तो पेरेंट्स को भी समझना है कि उन्हें अपने आप को थोड़ा अपग्रेड करना है, थोड़ा इवॉल्व करना है और अपने आप को एक अपडेटेड फील कराना है. उसके लिए आने के लिए सेम पेज पे रहना बहुत ज़रूरी होगा. अगर आप चीखना चिल्लाना बच्चे के सामने करेंगे तो वो कहीं ना कहीं सीखेगा दैट इट्स ओके टू शाउट. इट्स ओके नॉट टू शाउट. एंड ऑल्सो थिंग्स आर चेंजिंग. तो हमारी जनरेशन के पास वो पावर है टू चेंज द पैटर्न्स जो आपने देखा है. क्योंकि देखो पुराने ट्रेडिशनल पैटर्न्स वो हम नहीं कर सकते. हाँ. कि ठीक है इंडिपेंडेंस था, वो कहाँ से क्या आया, बहुत कुछ डिपेंड करता है उनके पैटर्न्स आने के लिए. बट मुझे लग रहा है कि अब वाली जनरेशन के पास वो उसको चेंज लाने के लिए शायद यू आर गोइंग अगेंस्ट द वेव्स. बट यू हैव टू ट्राई ना. आप इजीली एक्सेप्ट कर लोगे और ग्रिप करोगे दैट इज आल्सो नॉट द सॉल्यूशन. सो वी हैव टू ब्रिंग दैट चेंज. नीव इज ऑलरेडी वर्किंग ऑन दिस platform. Yes, and I'm so glad कि हमें ये change लाना है. We have to reach out to the wider audience. And as you correctly said कि teachers are only the players. So the work actually has to start from the top. तो ऐसे ही बच्चों की ज़िंदगी में भी टीचर्स सिर्फ एक प्रोवाइडर्स हैं, प्लेयर मतलब एक उनको उनके गाइड्स हैं, बट द एक्चुअल
education system is being built at home. It starts from home. Let's not forget home is the real platform.